Yeah. Mm, yeah, fine. So, I would like to talk about what you are confused about, this article thing, first of all. Let me open the book, and others hopefully will join us. Mm. Are you feeling okay? Yeah. Good. When you talk about advanced level grammar rules, they make more sense to those people who are actually at that level to understand it. If you think you'll start teaching grammar to anybody, I'm talking about advanced level. Of course, children are also taught grammar, but in a different way, simpler things, right? But when you want to go in detail, you have to ensure that the people you're talking to are actually capable of grasping those concepts. I have always found students struggling with that. And that's the reason that I have felt a little reluctant, to teach grammar. Mostly what happens is students don't understand English, okay, don't write, speak English, and they think grammar is the solution. No, you already speak some English, okay, you can write some English, but then you want to improve that. This is where English grammar can be useful. Again, today we are going to talk about some really interesting ideas, because if you have not been taught these ideas separately as an adult, you will always feel confused about them. The first thing that you were thinking about was, I think, yeah, this. It is clearly says that A is used before singular countable nouns when it is mentioned for the first time and represents no particular person or thing. So A flat or a particular flat are different in English. A flat refers to any flat, just one of many flats. All the flats that you have in the world, A flat, any one of them. So they live in a flat here implies, hello, Lucky, Lucky, you're Lucky from my intermediate class, pre-intermediate class, right? Okay. So Kushi, maybe he's got issues with the internet or microphone. I was saying, uh, here the focus is not A. The focus is वो flat में रहता है. It could be a cottage as well now. People live in a cottage as well. So they live in a flat. So basically the person wants to say कि वो लोग flat में रहते हैं. हिंदी में एक जरूरी नहीं है बोलना. हिंदी में इस ए के लिए एक बोलना जरूरी नहीं है. दे लिव इन अ फ्लैट. वो लोग फ्लैट में रहते हैं, कॉटेज में नहीं रहते, बंगलो में नहीं रहते, हाउस में नहीं रहते. ये बताना है. जब हम कहते हैं ही बॉट एन आइसक्रीम, तो कहना चाहते हैं उसने बिस्किट नहीं खरीदा, उसने कोल्ड ड्रिंक नहीं खरीदा, उसने आइसक्रीम खरीदा. ही बॉट एन आइसक्रीम. अब आइसक्रीम एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए आर्टिकल्स लगाते. ये बात समझने वाली है कि हिंदी भाषा में आर्टिकल्स होते ही नहीं हैं, तो उसके लिए इक्विवेलेंट ढूंढना ही बेवकूफ़ी होगी. ठीक है. तो मैं आपको फिर से बता दूं, हिंदी में आर्टिकल्स होते ही नहीं हैं, इसलिए उसके जगह कोई वर्ड ढूंढना समझदारी वाली बात नहीं है. तो अगर मैं कहूं ही बॉट एन आइसक्रीम, तो मैं सिर्फ इतना भी बोल सकता हूं और सही होगा कि उसने आइसक्रीम खरीदा, बिस्किट नहीं खरीदा. ही बॉट एन आइसक्रीम, ही डिड नॉट बाय अ बिस्किट. ओके, प्लीज अंडरस्टैंड. आपको दिमाग में रखना है कि अगर आप एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन बोल रहे हैं, पहली दफे उसका उसको यूज कर रहे हैं, तो आप ए लगा सकते हैं ये बताने के लिए, जस्ट वन ऑफ द काइंड. ओके, मतलब वो एक फ्लैट में रहता है, यानी कि वो हाउस में नहीं रहता, वो कॉटेज में नहीं रहता.
दूसरा रूल हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये सारे रूल्स हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट? आपको पता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, मुझे लगता है ये सारी चीजें क्लियर हैं। फिर बात आएगी, रुको, मैंने मैसेज किया है कि नहीं ग्रुप में? ओके, गिव मी अ सेकेंड। लकी ने लिखा है टेक्स्ट मैसेज में, हेलो, यस, ओके है लकी, हेलो। तो ये रूल्स हम लोगों ने ये सारे पढ़ लिए हैं, और हम यहाँ आ चुके थे एक्चुअली, ये सेक्शन बी पे। ओके। कुछ लोगों को लगता है ए मतलब एक होता है और वन मतलब एक होता है। बिल्कुल, कुछ हद तक कहा जा सकता है ऐसा कि ए का मतलब होता है एक, लेकिन वो एक बताना पॉइंट नहीं होता, नंबर फोकस करना पॉइंट नहीं होता। जब हम आपसे पूछते हैं एक्सक्यूज मी, डू यू हैव अ पेन, ठीक है, तो हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपके पास एक है कि दो है। हम आपसे पूछ रहे हैं पेन है कि नहीं है आपके पास। डू यू हैव अ पेन? ओके। तो यहां गौर करिएगा, मैंने पेन यूज किया है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसीलिए मैंने कहा डू यू हैव अ पेन। अगर मैं पेन्स पूछूं बोलूंगा तो ए ऑफ कोर्स नहीं बोलूंगा, क्योंकि ए कहाँ यूज होते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। अगर वही पेन के जगह मिल्क में बोलूंगा कि आपके पास दूध है, कि आपके पास पानी है क्या, तो आई विल नॉट यूज ए, बिकॉज क्लियरली It is uncountable. हाँ, इट इज नॉट काउंटेबल। तो ये पॉइंट है गौर करने वाली। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पर हम लोगों ने ध्यान दिया था कि शॉटगन इज नो गुड, मतलब शॉटगन से काम नहीं चलेगा। ओके। यहां पर फोकस है कि शॉटगन से काम नहीं चलेगा, कुछ दूसरा वेपन लेना पड़ेगा, दूसरा थिंग चीज लेना पड़ेगा। और यहां लिखा है वन शॉटगन इज नो गुड। यहां कहा जा रहा है एक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहां वन यूज किया गया है। ये पॉइंट ध्यान देने वाली बात थी। वन के और भी यूसेस हैं, ठीक है। ओके। वन डे अ टेलीग्राम अराइव्ड। वन डे अ टेलीग्राम अराइव्ड। आप लोगों ने इसको ग्रामर ना भी जाने तो आप शायद क्या बोलेंगे? हेलो यास्मीन मैम, ए डे अ टेलीग्राम अराइव्ड कि वन डे अ टेलीग्राम अराइव्ड, क्या बोलना चाहेंगे? एक दिन एक टेलीग्राम आया, ऐसे ही क्या बोलना चाहेंगे? मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कुछ ग्रामर रूल्स को, चूंकि हमारी और आपकी मदर टंग एक है, इसलिए मैं समझता हूँ कि वो प्रॉब्लम करेगा कि नहीं करेगा। कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जो आपकी मदर टंग से इतनी मैच करती हैं कि कोई रूल ना भी बताए तो भी आप वैसा ही बोलोगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे के बताता हूँ। हम भारतीय लोगों को, जो हिंदी बोलते हैं या दूसरी भाषा भी बोलते हैं, उनको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि अगर ब्यूटीफुल और गर्ल को साथ बोलना है तो क्या कैसे बोलना है। वो लोग आसानी से बोल देते हैं ए ब्यूटीफुल गर्ल। पता है क्यों? क्योंकि हिंदी में भी एक खूबसूरत लड़की बोलते हैं, जो कि वर्ड ऑर्डर मैच कर जाता है इंग्लिश के वर्ड ऑर्डर से। लेकिन अगर किसी स्पेनिश स्पीकिंग स्टूडेंट को ये बात ना बताई जाए, तो हो सकता है वो एक खूबसूरत लड़की बोलने के लिए इंग्लिश में वो बोल दे अ गर्ल ब्यूटीफुल, क्योंकि उसकी मदर टंग में ये ऑर्डर नेचुरल है। तो मैं यहां पर बिल्कुल टेंशन नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे लगता है वन विंटर द स्नो फेल अर्ली। एक जाड़े में क्या हुआ कि स्नो पहले आ गया, मतलब बर्फबारी पहले शुरू हो गई। वन विंटर द स्नो फेल अर्ली। क्या आप यहां पर ए विंटर बोलना चाहेंगे? नहीं बोलना चाहेंगे, आपके मन में आता ही नहीं है ऐसे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पर कोई परेशानी नहीं होने वाली। वन नाइट देर वॉज अ टेरिबल स्टॉर्म। एक रात जबरदस्त तूफान आया, ठीक है। तो जब आप किसी एक खास दिन, सप्ताह, मंथ, ईयर, समर, विंटर, इस तरह से डिनोट करते हैं टाइम को एक खास, तो आप वन बोलते हैं, ए नहीं बोलते हैं, क्योंकि आपको भी पता है ए कोई खास तो होता नहीं है। तो आप ए कैसे बोलेंगे वहां पे? क्योंकि आपको ए की तो फीलिंग आती है किसी दिन, किसी दिन, राइट? तो कोई एक दिन, ए डे। जबकि वन, वन यहां पर क्या हो गया?
कोई खास हो गया। वन नाइट, एक रात, मतलब किसी एक रात, कोई खास रात, राइट। वन नाइट देयर वॉज अ टेरिबल स्टॉर्म। और आप लोग ये बोलते भी है, हिंदी में भी बोलते हैं ऐसे, और इंग्लिश में भी यही बोलेंगे, नेचुरली आएगा आपके जहन में। आगे देखते हैं। ओके, वन डे आई विल शो यू वन डे। आप लोग भी तो ऐसा बोलते हैं कि एक दिन हम आपको बता देंगे, एक दिन हम आपको बता देंगे, ठीक ठीक है लोग। वन डे यूल बी सॉरी यू ट्रीटेड हिम सो बैडली। किसी दिन आपको बुरा लगेगा कि आपने उसको इतना बुरा ट्रीट किया था। ओके, आपको अफसोस होगा। वन डे यूल बी सॉरी, यू विल बी सॉरी। किसी दिन आपको अफसोस होगा, वन डे यूल बी सॉरी। गिव मी अ सेकेंड। यस, आगे देखिए। यहाँ वन डे मतलब समडे, ठीक है। और समडे और वन डे में जरा मुझे महसूस करके बताइए कि कौन ज्यादा कोलोकियल और इनफॉर्मल लगता है, वन डे या समडे? कौन सा सुनने में ज्यादा कोलोकियल? कोलोकियल मतलब समझते हैं, बातचीत में ज्यादा यूज होने वाला, फ्रीक्वेंट। कौन सा One ज्यादा day. लगा? वन डे आपको ज्यादा One day. लगा, वन डे आपको ज्यादा लगा, ओके। कोलोकियल और इन कैजुअल समडे ज्यादा है वैसे, समडे, ये जो अंग्रेजी बोलते हैं वो लोग, वो समडे ज्यादा बोलते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि हम लोग वन डे की आदत ज्यादा रखते हैं, क्योंकि हिंदी में जो बोलते हैं ना, एक दिन। हालांकि आप मुझे हिंदी में पूछता हूँ, किसी दिन या एक दिन, कौन सा ज्यादा आपको लगता है ज्यादा बातचीत वाला? कौन ज्यादा सुनते हो, किसी दिन या एक दिन? किसी See दिन। then. हाँ, तो आए ना सही सही जगह पे। वो किसी दिन के लिए समडे था, ठीक है। Okay. हाँ, तो आपने वो महसूस नहीं किया समडे। गानों वानों में अक्सर आपको मिलता है समडे, और बातचीत में बहुत कॉमन है समडे, मतलब किसी दिन, मतलब वही किसी एक दिन, वन डे। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रामर तभी सिखाया जाएगा आपको जब आप ऑलरेडी इंग्लिश में थोड़े कंफर्टेबल हो चुके हो, ताकि कुछ छोटी छोटी चीजें, हालांकि यहाँ पर मुझे नहीं लगती बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात है। आगे आते हैं थोड़ा, यहाँ देखिएगा। वन इज द प्रोनाउन इक्विवेलेंट ऑफ ए और एन। गौर करिएगा कि कभी कभी वन एक प्रोनाउन के तौर पे यूज होता है। जरा ये कॉन्वर्सेशन सुनिए। डिड यू गेट अ टिकट? डिड यू गेट अ टिकट? तुम्हें टिकट मिला क्या? डिड यू गेट अ टिकट? यस, आई मैनेज टू गेट वन। तो यस, आई मैनेज टू गेट अ टिकट। यहाँ वन, वन क्या आया? ए टिकट के जगह पे आया, क्योंकि इसने पूछा ही था कि आपको टिकट मिला। यस, आई मैनेज टू गेट वन। हाँ, मिल गया, एक मिल गया। आई मैनेज टू गेट वन। ओके, ये वन जो है एक प्रोनाउन है। और कैसे है प्रोनाउन? क्योंकि इसने रिप्लेस कर दिया ए टिकट को। मैंने ये बात जब एक बार फेसबुक पे किसी पोस्ट में लिखी थी और समझाया था, तो मेरी एक कैनेडियन फ्रेंड है, इंग्लिश उनकी मदर टंग है ऑफ कोर्स, उन्होंने मुझे मैसेज किया। मैंने कहा मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। मैंने कहा बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपने कभी इंग्लिश ग्रामर के लिए टेंशन नहीं लिया। इंग्लिश आपकी मदर टंग है, जैसे हम लोग हिंदी के लिए टेंशन नहीं लेते, वैसे ही। द प्लूरल ऑफ वन इज यूज्ड इन दिस वे इज सम। कभी कभी आप यहाँ पर देखेंगे, डिड यू गेट टिकट्स? यस, आई मैनेज टू गेट सम। यस, आई मैनेज टू गेट सम। डिड यू गेट टिकट्स? या, मैनेज टू गेट सम। यहाँ गेट सम बोलने का मतलब उसको एक टिकट मिली या एक से ज्यादा टिकट मिली? एक से Six. ज्यादा। बिल्कुल। तो ये बताने की क्यों जरूरत है? क्योंकि कई बार वन का प्लूरल वंस भी होता है, ONES। जैसे मैं आपको बताऊं, द वंस, द वन। ओके, सपोज हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हमेशा एग्जाम्पल से ही ग्रामर समझ में आएगा, रूल समझ में आएगी बातें। तो मैंने कहा कि वो जो, मान लो हम लोग के बीच बात हो रही थी स्वेटर खरीदने की, ठीक है ना। स्वेटर के बारे में बातचीत चल रही थी, हम लोगों ने कहा स्वेटर खरीदा। तो मैंने अभी कहा, मैंने जो वाला जो खरीदा था ना स्वेटर, द वन आई बॉट इज अ लिटिल टू लूज। द वन आई बॉट, ओके। नाउ द वन आई बॉट, मैंने यहाँ कहा द वन, गौर करिए इस वन पे, यानी द स्वेटर आई बॉट, राइट। तो ये अभी भी एक प्रोनाउन है, क्योंकि बात हो रही है स्वेटर की, और मैंने कहा मैंने जो खरीदा है ना वो थोड़ा बड़ा है। द वन आई बॉट इज अ लिटिल टू बिग। तो ये वन क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि स्वेटर के जगह पे आया है। एक नाउन के जगह आने वाले वर्ड्स को प्रोनाउन कहते हैं। अब दूसरी बात करें, कि मान लो मैं स्वेटर्स की बात करता है यहाँ पर, कि जो स्वेटर्स मैंने खरीदे वो थोड़े महंगे हैं। तो मैं क्या कहता? द वंस आई बॉट, द वंस आई बॉट वर अ लिटिल एक्सपेंसिव।
अब मैंने द वंस कहा, तो वन के दो प्लूरल हैं, एक प्लूरल है वंस और एक प्लूरल है सम। तो ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे कि कहाँ पे वंस आ रहा है और कहाँ पे सम आ रहा है। क्या आप महसूस कर रहे हैं इस चीज को? जैसे मैंने कहा, Yeah. जो स्वेटर्स की बात हो रही थी, मैंने एक नहीं खरीदा था, मैंने एक से ज्यादा खरीदा था। तो मैंने कहा कि वो स्वेटर्स जो मैंने खरीदे थे, द वंस आई बॉट वर एक्सपेंसिव, मैंने जो खरीदे थे वो महंगे थे। ओके, द वंस आई बॉट, यहाँ पर द सम आई बॉट नहीं बोलेंगे हम, द वंस आई बॉट। ओके, और यहाँ गौर करिए, डिड यू गेट टिकट्स? यस आई मैनेज टू गेट, वंस नहीं बोलेंगे, आई मैनेज टू गेट सम। तो अगर सम और वंस ऐसे स्लैश करके आपको दे दिया जाए चुनने के लिए, तो आप कैसे चुनेंगे? तो कोई भी ग्रामर रूल तभी काम करता है दिमाग में जब आप वहां लिखी भाषा को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। इसीलिए ऐसे लड़के लड़कियों को, ऐसे स्टूडेंट्स को जिनको भी इंग्लिश बिल्कुल समझ नहीं आती, सेंटेंस नहीं पढ़ पढ़ के समझ पाते, बोल नहीं पाते चार लाइन, उनको टेंस वॉइस नहीं समझ में आता, ऐसे लोगों को इंग्लिश सीखने की जरूरत है। उसको ग्रामर बोलना इज अ लिटिल बिट अनफेयर। ठीक है, ग्रामर बोलना अनफेयर है। जैसे खुशी, आप यास्मीन मैम, आप लोग इंग्लिश सीख रहे हैं मेरे उस क्लास में, 5-7 o'clock बैच में, ठीक है? तो उसमें आप ग्रामर भी इंक्लूड कर सकते हैं, वोकैबलरी भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप अभी रशियन सीखना चाहें, अगर आप अभी चाइनीज सीखना चाहें, तो क्या सीखेंगे? उसके ग्रामर सीखने लगेंगे या लैंग्वेज सीखेंगे? आप लैंग्वेज सीखेंगे पहले, Language. राइट? और जब आप Yeah. एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे, तब आप ये देखना चाहेंगे कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जो समझ में तो बात आ रही है लेकिन उतना करेक्ट नहीं है। तो वहां बात आती है ग्रामर की। तो ग्रामर इज लाइक दैट सोप दैट हेल्प्स यू वॉश द डर्टी क्लोथ्स दैट यू हैव। डर्टी क्लोथ्स यहाँ रिप्रेजेंट करता है आपकी फ्लॉड लैंग्वेज, जो लैंग्वेज में थोड़ी एरर्स हो। चलिए, ये चीज कई स्टूडेंट्स को बहुत सालती है, उनको कभी नहीं समझ में आता कि ए लिटिल और लिटिल में क्या फर्क होता है, अ फ्यू और फ्यू में क्या फर्क होता है, वो ए लगने से क्या फर्क होता है, क्योंकि इसको हमेशा साथ में पढ़ाया जाता है। मैं थोड़ा कोशिश करता हूं समझाने की ताकि आप समझिए। जब आपको भी बताना चाहते हैं कि कोई चीज कम है, ठीक है, आपके हिसाब से, तो आप अ लिटिल बोलते हैं, अ फ्यू बोलते हैं। पहली बात मैंने कही, आपको लगता है कोई चीज कम है, तो वहां पर आप ए लिटिल बोलेंगे, अ फ्यू बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कहना चाहते हैं कि आपके पास थोड़े से पैसे हैं, ज्यादा नहीं है, कम है, ठीक है, थोड़े से हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? आई हैव अ लिटिल मनी। I have a little money. अगर आप बोलना चाहते हैं कि मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है, थोड़े से ही दोस्त हैं, तो आप कहेंगे आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। I have ठीक है, few fun. फर्क अ लिटिल और अ फ्यू में एक बेसिक लेवल का होता है। बेसिक लेवल का फर्क यह है कि अ लिटिल अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले आता है और अ फ्यू काउंटेबल नाउन्स के पहले आता है। तो बेसिक लेवल पे आपको इसके एक्सरसाइजेस दिए जाते हैं जहां पे नाउन्स रख दिया जाता है एक, उसके बाद आपको कहा जाता है चुनिए, अ लिटिल चुनिएगा कि अ फ्यू चुनिएगा। तो आप डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नाउन वेदर इट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अगर आप नाउन समझने में गलत कर गए, अगर आपको नाउन नहीं समझ में आया कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, तो जाहिर सी बात है आप गलत चुन लेंगे। अ लिटिल यूज किया जाता है अनकाउंटेबल के साथ, अ फ्यू यूज किया जाता है काउंटेबल के साथ। पहले ये बात हो गई, और दोनों का मतलब होता है थोड़ा, ज्यादा नहीं। ओके, जब बात आती है, आप लोग मुझे कुछ अपने बारे में कुछ एक लाइन अ लिटिल अ फ्यू से कुछ बोल के It बताएंगे। was a little money. We can count money. मनी इज अनकाउंटेबल खुशी, क्योंकि काउंट करने का मतलब जब होता है तो आप वर्ड को नहीं देख रहे हो, आप उस मनी वर्ड जो है वो जिस चीज को रिप्रेजेंट करता है उसको सोच रहे हो, और वो भी एक फ्लॉड तरीके से। अगर मेरे You say, I पास, have a little water. हाँ वेरी गुड यास्मीन मैम, आई हैव अ लिटिल वाटर। खुशी, क्या होता है कई बार एक नाउन का एक गलत कॉन्सेप्ट दिमाग में बन जाता है, मनी सुनने पे आपके जहन में पैसा वर्ड आता है, राइट? और पैसा को भी आप अच्छे से फील नहीं कर पा रहे। आप, मैं आपसे पूछता हूं, मेरे पॉकेट में 2 रुपए भी नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे तीन बंगलोज हैं और 4 फैक्ट्रीज हैं, और अभी मेरे बैंक अकाउंट में 0 रुपया भाई, ठीक है? तो क्या मैं पैसे वाला हूं या नहीं? मेरे पास पैसे हैं कि नहीं है? क्या लगता है आपको? आप मुझे पैसा वाला मानोगे कि नहीं? मानेंगे। हाँ। तो मनी सिर्फ करेंसी को नहीं कहते। मनी जब वर्ड यूज होता है तो उसका मतलब वेल्थ होता है, एक तरह से देखा जाए, ठीक है?
तो अगर आप कहते हैं somebody has a lot of money, इसका मतलब नहीं कि उसके पॉकेट में एकदम ऐसा गोल सा बना हुआ है पैसे से, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। somebody has a lot of money, इसका मतलब वो काफी वेल्थी इंसान है। हो सकता है उसके बहुत सारा खेत हो, उसकी बड़ी गाड़ियां हो, बड़ा बंगला हो, ठीक है ना। और प्लस कैश भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मान लो किसी की वजह से उसने अपने सारे कैश किसी को दे दिए हैं अभी, तो क्या अब वो पैसे वाला नहीं रहा? He is, but we can count those things as well. हाँ, वेट House, वेट वेट वेट, मैं आ रहा हूँ। car. ओके लकी, इट्स ओके लकी। तो मैं बता रहा था कि मनी वर्ड जो है यहाँ पर, आपको मनी का मतलब आप समझिए, पैसा जो बोलते हो आप, वो वाला पैसा नहीं कि 1 पैसा, 2 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 200 पैसे, 400 पैसे, वो वाला पैसा नहीं है। वो पैसा एक यूनिट है करेंसी का, उसको काउंट कर सकते हैं। ज्यादातर कंट्रीज में दो करेंसीज होती हैं, जैसे हमारे यहाँ रुपया है, और रुपया का छोटा डिनोमिनेशन पैसा, छोटा ये है यूनिट है पैसा, राइट। तो आप ऐसे ही दूसरे कंट्रीज में भी, किसी के यहाँ डॉलर है तो उसके साथ सेंट है, किसी के यहाँ पाउंड है तो उसके साथ पेनीज, इस तरह के होते हैं कई कई कंट्रीज में। ये सब यूनिट कहलाते हैं, मनी करेंसी है, करेंसी, राइट। तो करेंसी काउंट करा जा सकता है, लेकिन पैसा काउंट नहीं होता, ठीक है। मनी काउंट नहीं होता। आप रुपया काउंट करते हैं, पैसा काउंट करते हैं, डॉलर काउंट करते हैं, तो ये काउंट करते हैं। मनी को अगर आप काउंट कर सकते तो आप 2 मनीज 3 मनीज भी तो बोलते। तो आप मनी काउंट नहीं करते हैं, आप मनी को एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। फिर से मैं बता दूं आपको, रुपया कॉन्क्रीट चीज है, हाथ में है आपके, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया। मैंने कल भी बताया था दूसरे क्लास में, और आज फिर बोलूंगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, और मनी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है सिर्फ दिमाग में, पैसा, ठीक है। तो ये सच की चीज नहीं है। सच में सही आपने कहा, उसके पास 5 घर है, घर काउंटेबल है क्योंकि एक कॉन्क्रीट नाउन है। उसकी 2 फैक्ट्रीज हैं, सही बात है। उसके 4 बड़ी 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 गाड़ियां हैं, गाड़ियां काउंटेबल हैं। और कुल मिला के कहते हैं उसके पास बहुत पैसा है, ठीक है। तो इसका Those emotions like happy, ये सब भी money में आएगा. फिर से, Emotions like अनकाउंटेबल नाउन हो गए, happiness. एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है ना, जैसे खुशी, जैसे गम, जैसे गुस्सा, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, राइट। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनके बारे में आपको देखने को नहीं मिलता कि वो सामने है, उसको आप छू सके, उनकी फिजिकल बॉडी नहीं होती। तो नाउन्स को सीधे सीधे 2 कैटेगरी में डिवाइड करना, एक कॉन्क्रीट और एक नॉन कॉन्क्रीट यानी एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद ऐसे 5 तरीके के बताते हैं ना, कलेक्टिव और ये कॉमन और प्रॉपर, ये सब वो सब अपने जगह पे है। लेकिन सबसे पहले नाउन्स 2 तरह से होंगे, एक नाउन जो फिजिकल बॉडी रखता है, कॉन्क्रीट, और एक नाउन जो एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो मनी के बारे में, खुशी, देखिए आप अच्छी खासी इंग्लिश बोल करके आ सकती है किसी के साथ, लेकिन आपके दिमाग में ये परेशानी है कि मनी क्या है, काउंटेबल नाउन है। अनफॉर्चुनेटली आप अकेली नहीं है। आप अभी भी अपने कॉलेज में अगर कुछ सर्वे करना चाहें तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप परेशान हुई हैं, उसको ना पेपर पे लिख कर आप अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के बीच बांट के रिजल्ट ले टिक करने के लिए, ठीक है। ज्यादातर स्टूडेंट्स आपकी तरह जवाब देंगे, ठीक है। यानी कि वो परेशानियां सबके जहन में रहती हैं, और इस वजह से ग्रामर क्लास की जरूरत पड़नी चाहिए। लेकिन फिर वही बात कि लोग वहां तब ग्रामर क्लास ढूंढने जाते हैं जब वो गांव से शहर आए हैं, जब उनको इंग्लिश का कुछ नहीं पता, उनको लगता है अब हमें इंग्लिश सीखना चाहिए, तो सीधे ग्रामर क्लास सोचते हैं। क्योंकि पता नहीं उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि यही शायद मदद करे, जबकि वहां पर उनको इंग्लिश लैंग्वेज क्लास चाहिए होती है। क्योंकि पहले इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आएगी, फिर समझ में आएगा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। अगर मान लो किसी ऐसे बच्चे को आपने बता भी दिया कि मनी अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसका क्या ही करेगा, इस बात को दिमाग में खाली बैठा कर रखा रहेगा। बाकी उसके सामने आप मनी को सेंटेंस पे लिख दोगे, उसको कुछ नहीं पता कि सही लिखा है कि गलत लिखा है, कि उसको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझ में आती है। तो इस बारे में कोई दो मत नहीं होना चाहिए किसी को, कि पहले लैंग्वेज समझ बनाए ताकि पढ़ के कुछ अंदाजा लगा सके क्या लिखा है, समझ बना सके, उसके बाद उसमें सही गलत का डिसीजन लिया जाए। तो अभी जैसे जितने एग्जांपल्स यहाँ लिखे हुए हैं, डिड यू गेट अ टिकट? यस, आई मैनेज टू गेट वन। तो आपको लगता है कि जितने बच्चे गांव से आते हैं शहर,
वो सब इसको पढ़ के तुरंत इसका अंदाजा लगा लेंगे क्या लिखा है, नहीं लगा पाएंगे। आप लोग यहाँ लगा पा रहे हो, इसीलिए मैं इसको एडवांस लेवल ग्रामर कहता हूँ। ठीक है, क्योंकि पहले आपकी इंग्लिश लैंग्वेज कुछ हद तक बेहतर हो चुकी है, अब आप ग्रामर पे काम कर रहे हैं। तो डिड यू गेट अ टिकट? यस, आई मैनेज टू गेट वन। डिड यू गेट टिकट्स? या, आई मैनेज टू गेट सम। तो ये सम है प्लूरल वन का, और हम बात कर रहे थे अ लिटिल और अ फ्यू। तो दोनों का मतलब होता है थोड़ा। और जैसे यास्मीन मैम ने कहा, आई हैव अ लिटिल वाटर इन द बॉटल इफ यू वांट। ठीक है, मान लो आपके सामने कोई थोड़ा ये कर रहा है, उसको कॉफिंग आ गई है, आप उसको थोड़ा पानी पानी देना चाहते हैं, बोल सकते हैं आई हैव अ लिटिल वाटर इन माई बॉटल, डू यू वांट? ओके। तो आप समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब कि अ लिटिल मतलब होता है थोड़ा। बेसिकली इसका मतलब होता है थोड़ा। अ लिटिल यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अ फ्यू यूज करेंगे काउंटेबल नाउन के साथ। उसके अलावा बात आती है, परेशानी तब होती है जब हम लोग खाली लिटिल और खाली फ्यू के बारे में सोचना चाहते हैं, क्योंकि इंडियन एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे अ लिटिल लिखा होगा और हो सकता है वो सही नहीं लिखा है, वहां लिटिल होना चाहिए। या लिटिल लिखा है और हो सकता है वो गलत है, वहां ए लिटिल होना चाहिए। तो दोनों में फर्क क्या होता है? तो अ लिटिल की बात तो मैंने कर ली है कि अ लिटिल मतलब होता है थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन लिटिल का क्या मतलब होता है? तो ये ब्रिटिश इंग्लिश में फॉर्मल इंग्लिश का एक चोचला है कि आप ध्यान रखना दोस्तों, आप कभी भी ए लिटिल और ए फ्यू छोड़ के खाली लिटिल और खाली फ्यू बातचीत में मत यूज करना। यूज ही नहीं करना, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको अभी फिलहाल। ठीक है ना? बहुत आगे चल के जब आपकी इंग्लिश बहुत फॉर्मल बहुत बेहतर हो जाएगी, तो कभी कभी लिखने में आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, नहीं तो आप सिर्फ पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। लिटिल बिना ए के या फ्यू बिना ए के फॉर्मल इंग्लिश में यूज होता है, और इसका मतलब होता है हार्डली एनी। इसका मतलब होता है हार्डली एनी, शायद ही। अब जरा सुनिएगा। ठीक है, फ्यू पीपल कैन बैट लाइक सचिन तेंदुलकर। फ्यू पीपल कैन बैट लाइक सचिन तेंदुलकर। ये बोलने वाले का क्या इरादा है, क्या बताना चाहता है बोलने वाला? सचिन तेंदुलकर को स्पेशल बता रहा है बोलने वाला। क्या बता रहा है? सचिन तेंदुलकर को स्पेशल बता रहा है। उसका बताने का मतलब है शायद ही कोई सचिन तेंदुलकर की तरह बैटिंग कर सकता है। फ्यू पीपल कैन बैट लाइक सचिन तेंदुलकर। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस सुनिए। आप पढ़ेंगे ऐसे सेंटेंसेस टेक्स्ट में, ये सब बोलचाल की भाषा में ज्यादा यूज नहीं होता। लिटिल इज नोन अबाउट हिज हिज मैरिड लाइफ। लिटिल इज नोन अबाउट हिज मैरिड लाइफ। उसकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में हम लोग को जानकारी नहीं के बराबर है, नहीं है लगभग। यानी कि हम लोग शायद ही कुछ जानते हैं उसकी मैरिड लाइफ के बारे में। लिटिल इज नोन अबाउट हिज मैरिड लाइफ। तो जब आप ना का एहसास कराना चाहते हैं, गौर करिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। जब एक ग्रामर टीचर से आप ग्रामर की बात सुन रहे हैं, तो जो टीचर ग्रामर वर्ड्स यूज कर रहा है समझाने के लिए, उस पर बहुत ज्यादा फोकस रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपने अपने खुद के वर्ड्स यूज कर दिए उसके एक्सप्लेनेशन में, तो लैंग्वेज इज स्लिपरी, वो कुछ और मैसेज दे देगा आपके दिमाग को। ठीक है, इसीलिए ग्रामर पढ़ना इज वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि जो भाषा यूज करते हैं टीचर समझाने के लिए, उस भाषा में स्टूडेंट्स थोड़े से बदलाव कर देते हैं, और उसके बाद वो लैंग्वेज, मैंने कहा स्लिपरी चीज है, मतलब एक हल्का सा से बहुत सारा चीज बदल बदल जाता है। तो आप कुछ और मीनिंग निकाल लेंगे। यही हुआ था आपके साथ खुशी, पहला रूल पढ़ते समय। तो मैं बताऊं कि उसकी मैरिड लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है लोगों को। तो मतलब ना के बराबर पता है। ओके, तो ना की फीलिंग देनी है, तो आप लाएंगे बिना ए वाला। लिटिल इज नोन अबाउट हिज मैरिड लाइफ, मैंने एग्जांपल दिया आपको। और सुनिए यहां पर कि अ लिटिल ऑफ यू ना की फीलिंग नहीं देता दोस्तों, थोड़ा है लेकिन हाँ है। तो सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि अ लिटिल और अ फ्यू हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस बनाता है, और लिटिल और फ्यू एक तरह से वो नेगेटिव सेंटेंस है। हालांकि दिखता नहीं है वो नेगेटिव सामने से, लेकिन उसकी फीलिंग नेगेटिव सेंटेंस से होती है। आप मुझे बताइए, क्या आपने हार्डली एनी पढ़ा है कभी? हार्डली एनी। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, उसका एग्जाम्पल नहीं लेंगे, ऐसे ही समझाएंगे। वो भी अपने आप में एक ग्रामर रूल बन जाता है, हार्डली एनी भी। क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना जिसकी मीनिंग पे बात नहीं होती है, उसके कैसे यूजेस होते हैं उस पर बात होती है, थोड़ा मामला पेचीदा हो जाता है। मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, सिचुएशन देता हूँ।
ताकि समझ में आए कि आप क्या समझ पाए हैं। आपके बॉटल में पानी है, किसी की प्यास बुझा सकता है, ठीक है, और किसी को प्यास लगी है, और आपको लगता है कि इतना पानी है, ज्यादा नहीं है, बात तो पहले क्लियर है, लेकिन इतना है कि प्यास बुझा सकता है। आप उसको क्या बोलेंगे अपना बॉटल ऐसे देते समय? देयर इज अ लिटिल वाटर कि देयर इज लिटिल वाटर, क्या बोलना चाहेंगे? सारे लोग मुझे A बताएंगे। little what? There आप is a little water. आपने क्या कहा उसको कि आप प्यास उसकी बुझ सकती, ये फीलिंग आपको देना है, ठीक है ना? ठीक है कि थोड़ा है, लेकिन हाँ वाली फीलिंग देने की, प्यास बुझ सकता है उसका। तो आप क्या बोलेंगे? देयर A इज There is a little. little a water. little water in the bottle if you want. There is a little water in this bottle if you want, है ना? सामने वाले को प्यास लगी है और आपके पास थोड़ा सा पानी है, लेकिन आपको ऐसा लगता है इससे प्यास बुझ सकती है, हाँ वाली बात हो गई ना, हाँ, तो आप उसको ऑफर करेंगे, देर इज अ लिटिल वाटर इन दिस बॉटल इफ यू वांट। ओके, बात समझ में आ गई? अगर दूसरा सिचुएशन लीजिए कि बॉटल भी है, पानी भी है, जाहिर सी बात है ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि इतने पानी से प्यास नहीं बुझेगी, सामने वाले को प्यास लगी, आप क्या बोलेंगे? देर इज लिटिल वाटर इन दिस बॉटल, you might have to ask somebody else. There is little water in this bottle. You might have to ask somebody else. गौर करिए यहां फर्क किस चीज से पड़ा। सेम सिचुएशन, कॉन्टेक्स्ट भी सेम है। आप बॉटल बढ़ा रहे, एक बार लिटिल बोल रहे, एक बार लिटिल बोल रहे, बिना ए के। आपके अंदर क्या चल रहा है? आप कह रहे हैं हाँ पी लो, हो जाएगा, थोड़ा सा है, हो जाएगा, लिटिल वाटर। नहीं हो पाएगा, प्यास में पानी बहुत थोड़ा सा, नहीं हो पाएगा। आपके दिमाग में ये चल रहा है, नहीं हो पाएगा, आपको किसी और से मांगना पड़ेगा प्यास बुझाने के लिए। देयर इज लिटिल वाटर इन दिस। ओके, तो अगर मैं दो चीजों के बारे में बोलना चाहूँ कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, देयर इज लिटिल डिफरेंस बिटवीन दीज टू। देयर इज लिटिल डिफरेंस बिटवीन दीज टू, मतलब आपको फर्क समझने की जरूरत है या नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूं मैं? देर इज लिटिल डिफरेंस बिटवीन दीज टू। पंखुड़ी, मुझे पता है कि आप कंफ्यूज हैं अभी, ठीक है, एंड आई एम ग्लैड दैट यू आर ऑन कैमरा, ओके, बिकॉज आई कैन सी। मुझे बताइए, आपके कंफ्यूजन का सोल्यूशन है मेरे पास। मैंने आपको कहा कि मैंने, टीचर ने कहा देर इज लिटिल डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, तो टीचर क्या कहना चाह रहा है? आपको इसके बीच का डिफरेंस समझना चाहिए कि नहीं समझने की जरूरत है? क्या कहना चाह रहा है टीचर? There is a little मैंने कहा difference. देर इज Please. लिटिल डिफरेंस, देर इज लिटिल डिफरेंस। हाँ, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। ये तो प्रॉब्लम है पंखुड़ी, आपको हाँ या ना का डिसीजन लेना होगा, मीनिंग नहीं समझ पाएंगी जब तक आप थोड़ा सा पे रहेंगी। थोड़ा सा पानी दोनों ही स्थिति में थी, दोनों ही स्थिति में बॉटल में थोड़ा सा पानी था। बोलने वाले ने एक बार लिटिल बोला क्यों, और एक बार लिटिल बोला क्यों? क्योंकि उसको लगा कि इसने पानी से प्यास बुझ जाएगा, हाँ नहीं बुझ पाएगा ना, तो उसने कहा देयर इज लिटिल वाटर। तो मैंने जब कहा, टीचर ने कहा, इंस्ट्रक्शन कह रहा है, कोई रूल कह रहा है देयर इज लिटिल डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स, तो रूल क्या कह रहा है कि आपको फर्क समझना है कि फर्क जानने की जरूरत नहीं है? फर्क जानने की जरूरत नहीं है। नहीं है, क्योंकि देर इज लिटिल डिफरेंस। ओके, और ध्यान रखिएगा, बोल चाल में बिना ए के मत यूज करिए, यानी खाली लिटिल और खाली फ्यू का यूज मत करिएगा। उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि कई बार लोग लिटिल को अ लिटिल समझ जाएंगे, क्योंकि बहुत तेजी से अ बोला जाता है, इसीलिए बोल चाल में लिटिल और फ्यू का यूज नहीं के बराबर होता है, ठीक है? बहुत फॉर्मल स्थिति में लोग, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत फॉर्मल तरीके से बातचीत करते हैं, स्पोक्स पर्सन वगैरह, वही लोग ये लिटिल और फ्यू बोलते हैं। और टीवी वगैरह पे, इंटरव्यू वगैरह में बोलचाल मतलब क्या होती है? टीवी पे इंटरव्यू बोलचाल है वो? नहीं, वो फॉर्मल हो जाता है थोड़ा, ठीक है? बोलचाल मतलब घर परिवार, दोस्त यार, स्कूल फ्रेंड्स, उसको बोलचाल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कोलोकियल, ओके, कोलोकियल, कोलोकियल बोलचाल वाली। तो वहां पे लिटिल खाली बिना ए के नहीं यूज करना चाहिए। मेरे जितने स्टूडेंट्स आते हैं, सबकी आदत होती है लिटिल बोलने की और फ्यू बोलने की, पता है? आप बहुत बोलती हैं फ्यू और लिटिल, पंखुड़ी, बिना ए के। अभी नहीं बोलती होंगी, मुझे नहीं पता। जब आप क्लास में थी ना शुरू में, तो आप बहुत बोलती थी फ्यू, फ्यू फ्रेंड्स आर कमिंग, फ्यू गेस्ट्स आर कमिंग। सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं ये, जबकि उनको क्या बोलना चाहिए? ओके। A few A guests are few. coming. A few guests are coming. Okay? तो few नहीं, a few, पहली बात।
ज्यादा कॉमनली यूज होता है अ फ्यू अ लिटिल, क्योंकि इसके यूसेस ज्यादा हैं। और फ्यू और लिटिल बिना ए के रेयर है, कम कॉमन है, फॉर्मल राइटिंग में यूज होता है, फॉर्मल स्पीकिंग में यूज होता है, उसका मतलब होता है ना। फ्यू पीपल विल डिसएग्री विद व्हाट आई एम सेइंग। बोलने वाला क्या कह रहा है कि लोग उसकी बात से डिसएग्री करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या कहना चाह रहा है वो? फ्यू बहुत पीपल कम विल लोग डिस फिर agree वही जा रही है आप पंखड़ी, फिर वही जा रही है। उसका बोलने का मतलब है नहीं कोई डिसएग्री करेगा, उसका बोलने का ये मतलब है। आप ये मत सोचिए कि बहुत कम लोग, फिर आप अफ्यू से क्या समझेंगी? ज्यादा लोग। जब आप फ्यू से कम लोग समझ रही तो अफ्यू से क्या समझेंगी? अ फ्यू पीपल विल डिसएग्री विद व्हाट यू आर सेइंग। अब बताइए, आप अटकी हुई हैं वहां पर, आप मेरी बात को एक्नॉलेज नहीं कर पा रही है, दिल में जगह नहीं दे पा रही है, दिमाग में। मैंने कहा अ फ्यू पीपल विल डिसएग्री विद व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है? और जब मेरा टोन देखिएगा, बहुत समझदारी से बता रहा हूं, अ फ्यू पीपल विल डिसएग्री विद व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है? और पहले मैंने कहा था फ्यू पीपल विल डिसएग्री विद व्हाट आई एम सेइंग। तो ये बोलने वाले के मन में क्या, बोलने वाला क्या बताना चाह रहा है कि ये जो बोल रहा है उससे कुछ कुछ लोग को डिसएग्रीमेंट है कि डिसएग्रीमेंट नहीं है, क्या बताना चाह रहा है ये? डिसएग्रीमेंट नहीं। नहीं है, वो अपनी बात को बताना चाह रहा है कि एक्सेप्टेबल है सबको। फ्यू पीपल विल डिसएग्री विद व्हाट आई एम सेइंग, इसका मतलब बोलने वाला ये। आपके हिंदी में चूंकि आपके फ्यू की हिंदी थोड़ा थोड़ा है तो आप थोड़ा चले जाते हैं, जबकि बोलने इंग्लिश बोलने वाले को थोड़ा वर्ड का आइडिया भी नहीं, को थोड़ा कोई वर्ड होता है हिंदी में, ठीक है? वो ये कह रहा है कि शायद ही किसी को मेरी बात से दिक्कत होगा। आप समझ में आई बात? थोड़ा तो वो सोच ही नहीं रहे थे, इंग्लिश बोलने वाले को थोड़ा वर्ड नहीं पता होता है, इसलिए थोड़ा दिमाग से निकाल करके ये सोचेगा शायद ही किसी को मेरी बात से डिसएग्रीमेंट होगी, ये कहा है उसने। फ्यू पीपल विल डिसएग्री विद व्हाट आई एम सेइंग, शायद ही। अब आप मुझे बताएं, सारे लोग बताएं, शायद ही बोलने वाला क्या कहता है? नहीं या हाँ? नहीं। हाँ, तो नहीं। यही है। ऑलराइट, शायद ही है। अगर आप कुछ एग्जाम्पल सोच पाएंगे, लिख पाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है? फिर से बोलता हूं, मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा जहां पर आपको ये बात बताई, एक दो एग्जाम्पल दिए। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि एक दो एग्जाम्पल्स आप सोच पाए, ज्यादा नहीं, 50 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, एक दो बस काफी है समझने के लिए कि आप उसी फील्ड, उसी तरीके से बात का जो कहते हैं ना कॉन्टेक्स्ट पकड़ रही हैं, फ्लो पकड़ रही हैं, जो टोन है, इमोशन है, वो पकड़ रही है कि नहीं। तो जैसे मैंने कहा, शायद ही किसी को इस बात से प्रॉब्लम होगी, फ्यू पीपल विल हैव एन ऑब्जेक्शन टू दिस Sir, रूल। your यस, speak, I don't know. I व्हाट can't हैपेंड? listen you in between. अच्छा, कुछ Your कुछ voice got नेटवर्क चला गया होगा। silent. अभी अभी ठीक है Wait, क्या? For some seconds, sir. your voice is clear, ओके, audible. एंड कंसिस्टेंट? Yeah, it is. ओके, Yes, sir. It may be ओके, my network issue. प्रॉब्लम ऑन हर साइड। तो Hmm. पंखुड़ी बेटा, जब मैंने कहा ना कि फ्यू पीपल विल हैव डिसएग्रीमेंट, तो इसका मतलब है किसी को मेरे बात से डिसएग्रीमेंट नहीं होगा, ये उसके मन में है। और इसके बोलने का अंदाज अगर हिंदी में चाहेंगे तो मैं इस सेंटेंस को इसके ज्यादा करीब मानता हूं, शायद ही किसी को इस बात से परेशानी होगी या डिसएग्रीमेंट होगा। आप ये हिंदी सेंटेंस सुनती है ना? अब इसके लिए कौन सा इंग्लिश बोलना चाहेंगे? Few people हाँ, don't think एग्जैक्टली, this. ओके। हम्म। और अफ यू से हमेशा हाँ की फीलिंग आएगी। हाँ की फीलिंग, प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोग उसको थोड़ा समझते हैं। थोड़ा तो मैंने क्लियर कर दिया था, लेकिन जब फ्यू और अफ्यू की बात करनी है हमें, तो ये बताना है कि अफ्यू मतलब हाँ होता है और फ्यू मतलब ना होता है। अ लिटिल मतलब हाँ होता है और लिटिल मतलब ना होता है। अब जब मैं ये बोल रहा हूं तो कोई कहेगा अ लिटिल मतलब हाँ, व्हाट डू यू मीन? तो कहने का मतलब जो यूज आपने किया है, आपकी अग्री हाँ की फीलिंग आएगी। जैसे आपके बच्चे ने आपको जिद करा पार्क, ये मॉल में कुछ खरीदने के लिए सारी शॉपिंग के बाद। ओके, आपको हाँ बोलना है कि ठीक है ले लेते हैं। तो आप क्या बोलेंगे? ओके, आई हैव अ लिटिल मनी लेफ्ट, आई हैव लिटिल मनी लेफ्ट। कौन सा बोलना चाहेंगे? लेट्स बाय इट, कौन सा बोलना I चाहेंगे? I have a have a little little money money left. left. और टोन, यही दिक्कत है, आपने जिस टोन में बोला मैं नहीं मानता, मेरी प्रॉब्लम यही है कि मैं कैसे उस सेंटेंस को लूँ जिस टोन में आपने बोला है। बच्चे को आप हाँ बोल रहे हो तो हाँ वाला टोन लाओ ना। ओके, आई हैव अ लिटिल मनी लेफ्ट, लेट्स बाय इट। तब आप फील कर पाओगे अ लिटिल को, नहीं तो फिर थोड़ी देर बाद आप वापस चले जाओगे कंफ्यूजन स्टेट में। ओके, आई हैव अ लिटिल मनी लेफ्ट, लेट्स बाय Okay. इट।
I have a little I money have left. a little money Let's left. buy. Let's buy it. हाँ है थोड़ा, हिंदी में आप सोचिए, हाँ है थोड़ा पैसा बचा हुआ, ले चलिए खरीद लेते हैं। ठीक है, आपने हाँ बोला, आपके बच्चे ने जिद करी, हालांकि बोलचाल की भाषा में नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूं कि बोलचाल की भाषा में कॉमन नहीं है इसका यूज, आप कर सकते चाहे तो। आपके बच्चे ने जिद करी, ठीक है, चलिए मैं फॉर्मल बना देता हूं ना, गवर्नमेंट की तरफ से एक्सप्लेनेशन आ रहा है कि फंड नहीं है इस काम के लिए, लिटिल मनी इज लेफ्ट इन द फंड, ओके, लिटिल मनी इज लेफ्ट इन द फंड Yeah. फॉर दिस प्रोजेक्ट, ओके। तो वो क्या कह रहे हैं, लिटिल मनी इज लेफ्ट इन द फंड फॉर दिस प्रोजेक्ट, तो वो कह रहे हैं पैसा अभी पैसा के लिए नहीं फंड नहीं है। है। उनका नहीं। कहने का मतलब पैसा नहीं है, वो नहीं कह रहे कि थोड़ा पैसा है। ये थोड़ा पैसा जब तक आप सोचते रहोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा हाँ ना वाला फीलिंग, इसीलिए मैं हाँ ना लेके आया कॉन्सेप्ट आपके। अंग्रेज जब बोलते हैं लिटिल और लिटिल, तो उनके जहन में ये चल रहा होता है, मैं वो बता रहा हूं आपको, उसकी हिंदी नहीं बता रहा, क्योंकि अंग्रेजों को हिंदी वर्ड्स नहीं पता। और आप जब भी हर समय हिंदी सोचोगे तो आप फंस जाओगे, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड ज्यादा है, हिंदी के कम। तो आपको दो इंग्लिश वर्ड्स के लिए एक ही हिंदी वर्ड लेना पड़ेगा, फिर आप कैसे समझोगे दोनों के बीच का फासला। अगर इंग्लिश में 10,000 वर्ड्स हैं और हिंदी में 6,000 वर्ड्स, तो आपको 4,000 वर्ड्स के लिए इन्हीं 6,000 के वर्ड्स में से यूज चुनना पड़ेगा ना, फिर आप फर्क कैसे समझोगे। यही दिक्कत होती है कि लड़के चाहे 5 जगह ग्रामर पढ़ें, उनको कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम लगा ही रहता है कि लिटिल और लिटिल का फर्क क्या है भाई। हाँ, ये वाला क्लियर हो जाता है, स्मार्ट बच्चों को ये क्लियर हो जाता है आसानी से। मुझे आप सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप में मुझे जीरो जरा भी डाउट नहीं है, आई हैव लिटिल डाउट, चलिए आता हूं, ठीक है, आई हैव लिटिल डाउट, ठीक है, आई हैव लिटिल डाउट दैट यू गाइस विल हैव कंफ्यूजन्स बिटवीन अ लिटिल एंड अ फ्यू। ये तो सीधा बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स। तो जब चीजें ऐसे डिसाइड होने वाली होती हैं, थिंग्स आर इजी, राइट। वहां मामला खाली ये हो जाएगा, आपसे गलती हो गई तो आपके टीचर ने आपको बता दिया, नहीं बेटा ये नाउन काउंटेबल है, ओ मुझे लगा अनकाउंटेबल, बात खत्म, राइट। लेकिन अ लिटिल और लिटिल का मामला तो फीलिंग का है, तो वो Like कैसे बताऊं इस शब्दों में। हाँ हाँ बताओ, I have an example. यस प्लीज। I have few dresses to wear for the party. वेरी गुड, वेरी नाइस। फॉर स्पेशल ओकेजन्स, द पार्टी के लिए छोड़ देते हैं, स्पेशल ओकेजन्स बोल देते हैं, Special प्लूरल, occasions. ताकि वो फील ज्यादा सही हो, राइट। द पार्टी, जब आप एक पार्टी की बात करें तो क्यों ड्रेसेस के, एक ही ड्रेस काफी हो सकता है ना, इसके लिए। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि स्पेशल ओकेजन पे पहनने के लिए कपड़ा कहाँ है मेरे पास, आई हैव फ्यू ड्रेसेस टू वेयर ऑन स्पेशल ओकेजन्स। आप समझ रहे हैं मैंने क्यों द पार्टी को स्पेशल ओकेजन्स किया। तो जब आप लैंग्वेज को सही से फील करेंगे, तो एग्जाम्पल्स, मैं कई जगहों पे टीचर्स के एग्जाम्पल को देख के फील करता हूँ। जब मैं खराब एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे पता चल जाता है कि यार ये अच्छा एग्जाम्पल मैं नहीं दे रहा, मानता भी वहां पे कि ये मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि जब आप कोई एक चीज सिखाना चाह रहे हैं, तो क्या साथ साथ आप कुछ बिगाड़ना भी चाह रहे हैं, नहीं ना। तो आप ऐसे एग्जाम्पल्स क्यों देंगे जो अपने आप में एक अच्छा सेंटेंस ही नहीं इंग्लिश का। So I'm fed up with that kind of teaching of grammar. I've seen a lot, like I said, for a long time I was not venturing into this. लेकिन मुझे लग रहा है कि चलिए let's try, okay? तो आते हैं वापस, आपने कहा यू हैव फ्यू क्लोथ्स टू वेयर ऑन स्पेशल ओकेजन्स, फ्यू ड्रेसेस टू वेयर ऑन स्पेशल ओकेजन्स। बहुत बढ़िया बात है, शायद ही आपके पास कपड़े हैं स्पेशल ओकेजन्स पे पहनने के लिए, यानी कि नहीं है, आप यही बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आपके पापा ने, आपकी मम्मी ने, आपके हस्बैंड ने ऐसा कहा, मैं थोड़ा सा मान लीजिए कि मैं आपको अभी उसी ट्रेडिशनल सोच में रख रहा हूँ जहाँ पैसे नहीं कमा रही हैं, प्लीज जज मत करिए, कि मान लीजिए कि उनके पैसे की कमी चल रही, तंगी चल रही, तो आप उनको कैसे आप ये कराएंगे कि ठीक है रहने दीजिए, है हो जाएगा थोड़ा। लेकिन जाहिर सी बात है आपके पास कपड़े बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए तो आप कह रहे हैं ठीक है रहने दीजिए, आप उनकी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, मैनेज कर लेंगे आप क्या बोलेंगे, इट्स ओके लीव इट, आई हैव A few dresses to I wear. have आ गए few सही जगह पे। dresses. अब यही है फील इंग्लिश की, अ फ्यू और अ फ्यू का फर्क। आई होप यू अंडरस्टैंड। फ्यू नेगेटिव फीलिंग देगी ए के बगैर, लिटिल नेगेटिव फीलिंग देगी ए के बगैर, और ए फ्यू ए लिटिल हमेशा हाँ के लिए ही यूज करना है आपको। हाँ ठीक है कम है, लेकिन हाँ है, हाँ फीलिंग हाँ होना है उसका। गॉट इट। चलिए देखते हैं, और काउंटेबल अनकाउंटेबल में तो परेशानी नहीं है, लिटिल अनकाउंटेबल के साथ और अ फ्यू
काउंटेबल के साथ, ये तो बेसिक काउंटेबल बात है, सर। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ओके, ओनली अ फ्यू ऑफ दीज आर एनी गुड। ठीक है, कुछ ही ठीक ठाक हैं इसमें से। ओके, ओनली अ फ्यू ऑफ दीज आर एनी गुड। चलिए, ये भी ठीक है। बाय द वे, आप में से कई लोगों को लग रहा होगा a few can dance here, few people can speak French here. All right, very good, very good, very good. शायद यहाँ कोई few people in India, you know, think of learning African languages. Okay, few people in India think of learning African languages, right? शायद ही कोई भारत में अफ्रीकन लैंग्वेजेस सीखने की कोशिश करता है। अब एक दो निकल आएंगे तो क्या दिक्कत है, क्योंकि आप थोड़ी बोल रहे हैं। लेकिन आपका कहने का मतलब है कि लोग अफ्रीकन लैंग्वेज सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, यही था आपके दिमाग में। ठीक है, एक दो लोग निकल आए तो आपका स्टेटमेंट गलत नहीं होता। 10 लोग निकल आए 140 करोड़ में तो आपका स्टेटमेंट गलत नहीं होता है। फ्यू पीपल शो इंटरेस्ट इन लर्निंग अफ्रीकन लैंग्वेजेस हियर। एक टीचर जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है इस बात से कि लड़के इंग्लिश क्लास ज्वाइन करते हैं एग्जाम पास करने के लिए, उनको सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो वो कैसे बोलेगा फ्यू स्टूडेंट्स हैव एन एक्चुअल इंटरेस्ट इन लर्निंग इंग्लिश, फ्यू स्टूडेंट्स शो रियल पैशन फॉर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, तो पॉइंट यहां था कि ना बोलने के लिए आप ये बगैर ए के यूज कर लें, और हाँ बोलने के लिए ए के साथ। जब भी अगली बार, अब यहां से क्या करो आप लोग कि जब भी आपके सामने अ फ्यू और फ्यू, अ लिटिल और लिटिल आए, तो मेरा बताया हुआ एक्सप्लेनेशन वहां अप्लाई करके देखो, डज इट मेक बेटर सेंस टू अंडरस्टैंड द मैसेज। तो अगर हाँ, तो बार बार ये चीज तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी। तुम्हें ढेर सारे एग्जाम्पल्स नहीं लिखना है। ठीक है, मान लो कि 4 लोग आप लोग जो हो यहाँ पर केपेबल हो लिखने के, मान लेता हूँ, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग नहीं लिखने वाले होते, उनके लिखने की समझ नहीं होती, लेकिन ये बात मैंने हिंदी में बताई है तो दिमाग में रह सकता है। और जब वो इंग्लिश सेंटेंस पढ़ें तो इसको अप्लाई कर सकते हैं समझने के लिए कि सर ने ऐसे एक्सप्लेन किया था, देखते हुए एप्लीकेशन एक्सप्लेनेशन यूज करके क्या सेंटेंस की मीनिंग समझ में आती है। तो हाँ, ठीक है, बढ़िया बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें स्पीकर के बारे में, स्पीकर का ओपिनियन होता है अ लिटिल अ फ्यू। जो बोल रहा है वही बोल रहा है ना, अपना ओपिनियन दे रहा है कि भाई थोड़ा है, राइट। तो स्पीकर कंसीडर्स ए स्मॉल अमाउंट, स्पीकर कंसीडर्स ए स्मॉल नंबर, फ्यू नंबर के लिए, और अ लिटिल अमाउंट के लिए, क्योंकि वो अनकाउंटेबल के साथ होने वाला है। ओके, कई बार आप ओनली लगा देते हैं इनके पहले, ओनली अ फ्यू और ओनली अ लिटिल। ठीक है, कई बार आप ऐसा करते हैं। क्या क्यों करते हैं? इसको एम्फेसाइज करने के लिए कि वो नंबर रियली छोटा है, वो अमाउंट सही में थोड़ा सा है एकदम। तो आप कह सकते हैं ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स फिनिश द कोर्स, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स फिनिश द कोर्स। तो आप समझ गए कि मैंने कहा है जो नंबर है बहुत ही छोटा है, ओनली अ फ्यू। तो ओनली लगा देने से ये अ फ्यू क्या हो जाता है, एम्फेसाइज हो जाता है। नो प्रॉब्लम्स हियर। ओके, लेकिन अगर ओनली की जगह क्वाइट लगा दे अ फ्यू के पहले और अ लिटिल के पहले, तो उल्टा हो जाता है, वो नंबर कंसिडरेबली बड़ा हो जाता है, अमाउंट अच्छा खासा हो जाता है। ओके, गौर से देखिएगा। आई हैव क्वाइट अ फ्यू बुक्स ऑन आर्ट। हाँ, आई हैव क्वाइट अ फ्यू बुक्स ऑन आर्ट। अ फ्यू अभी भी है। कई लोग ए फ्यू सुनते के साथ सो जाते हैं थोड़ा सा, और उस क्वाइट को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन क्वाइट अगर आ गया अ फ्यू के पहले, तो वो एक्चुअली अच्छा लार्ज कर देता है, उसको बड़ा कर देता है उसको। वो अ फ्यू नहीं रहा वो। ठीक है, कैसे इतना पैसा में हम पार्टी करेंगे बर्थडे का, आई हैव क्वाइट अ फ्यू फ्रेंड्स। ठीक है, तो ढेर सारे मेरे अच्छे खासे फ्रेंड्स हैं, इतना पैसा में नहीं होगा पार्टी, सन इज कंप्लेनिंग। ओके, तो क्वाइट अ फ्यू फ्रेंड्स। ओके, क्वाइट अ फ्यू स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। तो टीचर क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग एब्सेंट है कि बहुत सारे लोग एब्सेंट हैं? क्वाइट अ फ्यू स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, बहुत सारे लोग कुछ लोग। absent। बहुत सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, क्योंकि क्वाइट अ सर फ्यू बोल। क्वाइट, हाँ हाँ, पूछिए, मैं तो चाह रहा it हूँ कि sounds like small.
ये मैं जो भी रहे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप बोलेंगे क्वाइट अ फ्यू, क्वाइट अ लिटिल, तो आपने उसको बड़ा बना दिया, अब वो थोड़ा सा नहीं रहा, बिल्कुल So अपोजिट like हो गया। हाँ बोले quite a few is equals to plenty of. I हाँ have एग्जैक्टली, plenty of friends. ये Quite a few ए friends. कंसिडरेबल नंबर, ए कंसिडरेबल नंबर, Number. कंसिडरेबल, अच्छा ये भी एक एडजेक्टिव है, ठीक है, जिसका मतलब होता है ढेर सारा। ओके, कंसिडरेबल अमाउंट। ओके, ठीक है। ओके, तो इंग्लिश में मैं बता तो रहा हूं कि अब मान लो यहां पर कोई सुनीता होती बैठी, वो कहती है सर जनरस जनरस ढेर सारा होता है। तो प्रॉब्लम क्या है ना, कि हाँ सही बात है, अब हर आप एक एक वर्ड बोलो, मैं उस पर डिफरेंस बताता चलूं, ठीक है, कर सकते हैं हम लोग ऐसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो कर ही रहा हूं ये चीज भी, ठीक है। लेकिन एक सिस्टम होता है, अगर आप खूब पढ़ते हो तो आपको वर्ड्स की फीलिंग आती है अलग अलग। अब कंसिडरेबल और जेनरस अमाउंट, कंसिडरेबल अमाउंट में क्या फर्क है? तो जेनरस अमाउंट देने वाले के दिल, ये बड़ा बड़ा दिल दिखाता है, ठीक है, और कंसिडरेबल अमाउंट बताता है कि जिससे फर्क पड़ जाए इतना पैसा। तो कोनोटेशन में फर्क है, दोनों में अच्छा खासा पैसा है, ठीक है। तो जब देने वाले की तरफ से बोला जाए कि दिल खोल के दिया है, तो ही ऑफर्ड ए जेनरस अमाउंट टू द चैरिटी, ही ऑफर्ड ए जेनरस अमाउंट टू द चैरिटी। अगर ये बोला है जेनरस अमाउंट यहाँ पे, तो बोलने का मतलब है कि उसने दिल खोल के दिया, उसने ये नहीं दिखाया कि कम देते हैं, थोड़ा सा 500 ही देते हैं, 1000 ही देते हैं, उसने दिल खोल के दिया, अच्छा खासा दिया। और जब कहा ही गेव ए कंसिडरेबल अमाउंट टू द चैरिटी, तो दोनों में अच्छा खासा पैसा दिया है, ये बोलने का मतलब हो जाता है कि वो इतना पैसा था जिससे कि चैरिटी में फर्क पड़ सकता है, उसके काम में कुछ असर हो सकता है। आपको बात समझ में आ रही है? क्योंकि इट्स अ कंसिडरेबल अमाउंट, जिसको कंसीडर किया जा सकता है, कंसीडर वर्ब से लेना देना आ गया। तो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी जब आपने दिया चैरिटी को, तो आपने इतना पैसा दिया कि जिससे फर्क पड़ेगा, कुछ चेंज आएगा। ऐसा नहीं कि जिसका वैल्यू नहीं रहेगा, कहते ना कि वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो नहीं, वैल्यू है, कंसिडरेबल, कंसिडरेबल अमाउंट, कंसिडरेबल नंबर। ओके, तो ऐसे करके फीलिंग्स आते हैं वर्ड्स की अलग अलग, और ये सब चीजें उन्हीं लोग के लिए हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ समय बिता रहे हैं, ठीक है, जो सिर्फ टीचर्स की बात सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं, घर जाते हैं, अगले दिन क्लास आते हैं, वो जिंदगी भर बस इंग्लिश में एग्जाम पास कर सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, कई स्मार्ट लोग कर लेते हैं, लेकिन लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। इस वजह से दे नीड टू रीड अ लॉट इन इंग्लिश, लिसन टू अ लॉट ऑफ इंग्लिश। अभी मैंने जो दो फ्रेजेस यूज किए हैं, उसमें अगर फर्क देखा जाए, पागल हो जाता है, इसीलिए मैंने ग्रामर को अवॉइड करा ना, कि जब आपके पास इतनी सी मुट्ठी सी चीज है, तब तो आप उसको एक दो चार पांच करके बता देंगे, लेकिन इननंबरेबल है, कैसे बताएंगे? अभी मैंने एक फ्रेज कहा, मैंने कहा दे नीड टू लिसन टू अ लॉट ऑफ इंग्लिश, मैंने कहा लॉट ऑफ इंग्लिश यहाँ पे, और फिर अगले ही बार कहा मैंने, या उसके पहले कहा था दे नीड टू रीड अ लॉट इन इंग्लिश। अब वो ऑफ और इन, कुछ लोग गौर करेंगे ये कैसे हुआ, ए लॉट ऑफ इंग्लिश, अ लॉट इन इंग्लिश, क्या वो लिसन और रीड की वजह से हुआ ना? यू नीड टू लिसन टू अ लॉट ऑफ इंग्लिश, यू नीड टू रीड अ लॉट इन इंग्लिश। तो ये अ लॉट जो है रीड के लिए था, और जो लिसन वाला अ लॉट था वो लिसन के लिए नहीं था, अ लॉट ऑफ इंग्लिश था। A lot of English, read a lot in English, दोनों में किस तरह से ये फर्क है देखिएगा। Listen to a lot of English, read a lot in English। तो ये आप कब सीखेंगे ये सारी चीजें? जब आप खूब समय देते हैं इंग्लिश को, तो ठीक है। और बाकी एग्जाम पास करना ठीक है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से एडवांस लेवल ग्रामर जानने की जरूरत भी नहीं है एग्जाम पास करने के लिए लोगों को, ठीक है। ये क्लास शायद उन लोगों के लिए जो पैशनेट फील करते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, जिनको इंग्लिश में ना वो चीजें पसंद नहीं आती, कंफ्यूजन पसंद नहीं आती, उनको उनको लगता है कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, मुझे क्लैरिटी चाहिए। सो दे शुड बी अटेंडिंग दिस क्लास मेनली। चलिए देखें, आगे बढ़ाते हैं। मुझे नहीं लगता इतनी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन किसी इंडियन एग्जाम्स के लिए डायरेक्टली काम आने वाली है। हाँ, इंग्लिश की समझ बन जाएगी तो इवेंचुअली तो हेल्प करेगी ना आपकी।
राइट? बट डायरेक्ट ऐसे एग्जाम्स में, ऐसे जैसे मैंने अभी बताया, रीड अ लॉट इन इंग्लिश, लिसन टू अ लॉट ऑफ इंग्लिश, इससे कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला। हाँ, तो खुशी आप सोच रही थी क्वाइट का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है? तो बिल्कुल आप सही हैं, कई जगहों पे क्वाइट का यूज होता है। शी इज क्वाइट टॉल, मतलब बहुत लंबी नहीं, ठीक ठाक लंबी है, ठीक है? नॉट, शी इज नॉट वेरी टॉल, ओके। लेकिन जब क्वाइट को यूज करते हैं लिटिल और अ फ्यू के पहले, तो उसके मीनिंग को बिल्कुल अपोजिट कर देता है। जो थोड़ा था वो ढेर सारा हो जाता है। He gave me quite a few suggestions. He gave me quite a few suggestions. तो उसने थोड़े सजेशन दिए कि ढेर सारे सजेशन दिए? Yes, ढेर ढेर सारे सारे। सजेशंस दिए। ओके, ही गेव मी क्वाइट अ फ्यू सजेशंस। ऑलराइट, और क्या मैं बताऊं क्वाइट और लिटिल के लिए? रुक जाए। जैसे मैंने आपको बताया है, पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, सिर्फ जो लिटिल और फ्यू होता है वो नेगेटिव फीलिंग देता है। लीजिए सेंटेंस आ गया आपके सामने, देयर वाज लिटिल टाइम फॉर कंसल्टेशन। तो फैसला बिना कंसल्टेशन के लिया गया कि कंसल्टेशन करके लिया गया? सेंटेंस करके पढ़ के बिना बताइए। कंसल्टेशन का, क्यों नहीं किया गया कंसल्टेशन? क्योंकि समय नहीं था। यही हुआ, ठीक है? मामला यही है, एग्जैक्टली यही है। आप थोड़ा के चक्कर में जाएंगे और फंस जाएंगे। हुआ कि नहीं हुआ तो थोड़ा बोलने से ये तो पता नहीं चलता ना कि कंसल्टेशन हुआ कि नहीं। लेकिन जैसे ही आप पढ़ते देयर वाज लिटिल टाइम फॉर कंसल्टेशन, बताने वाला कह रहा है नहीं कर पाए कंसल्टेशन, समय नहीं था। यही मतलब है बताने वाले का, नहीं हुआ, 100% कंसल्टेशन नहीं हुआ, इसलिए उसने लिटिल लिखा। गॉट इट? आगे आइए। फ्यू टाउन्स हैव सच स्प्लेंडेड ट्रीज। कहने वाला क्या कह रहा है कि ये जो स्प्लेंडेड ट्रीज जो देख रहा है वो, ठीक है, वो ट्रीज किसी खास शहर की खासियत है कि मिल जाएंगे आपको दूसरे जगहों पे? किसी खास शहर की खासियत है, मतलब वो एग्जैक्टली, हर फ्यू जगह टाउन्स हैव सच अवेलेबल। स्प्लेंडेड ट्रीज। फ्यू टाउन्स हैव सच स्प्लेंडेड ट्रीज। उसको स्पेशल बताया जा रहा है उस जगह पे कि इसी शहर की खासियत है ये, आपको नहीं मिलने वाले ऐसे आसानी से। ऐसे बोलिए, शायद ही किसी शहर में ऐसे जबरदस्त पेड़ हो, शायद ही किसी शहर में। फ्यू टाउन्स हैव सच स्प्लेंडेड ट्रीज। तो प्लीज, वो थोड़ा वर्ड से खाली किनारा करके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना? अगर उस थोड़ा वर्ड से किनारा कर लेंगे आप बिल्कुल पहुंच जाएंगे। वो बिना एक शायद ही पे रहिए, ठीक है? ज्यादा ज्यादा बार ऐसा फिर भी मैं नहीं बोलता कभी भी कि एक वर्ड हर जगह काम आए, लेकिन ये काम आता रहेगा, आपको आ ही रहा है। दो चार जगह मैंने तो कर ही दिया यूज इसको। yes, ये ज्यादातर आपको फॉर्मल कन्फाइंड टू रिटन इंग्लिश, जैसे मैंने बताया कि ये रिटन इंग्लिश तक ही, इट इज मेनली कन्फाइंड टू रिटन इंग्लिश। ये ज्यादा बोलचाल में नहीं यूज होता बिना ए वाला। Probably because in conversation, little and few might easily be mistaken for a little a few. देखा कि बोलचाल में क्या होता है ना, वो उसको हो सकता है a little सोच लिया जाए और मीनिंग बदल जाएगी, ना से हाँ हो जाएगा, मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए हम्म चलिए आते हैं। कभी कभी ना इसको ना आप देखिए, वी सॉ लिटिल, वी सॉ लिटिल। अभी खाली हम लोग लिटिल को नाउन के साथ नहीं रखते, वर्ब के साथ भी रखते दोस्तों, ठीक है? गौर से देखिएगा। अच्छा, वी सॉ लिटिल, वी डिडंट सी मच, वी डिडंट सी मच। आगे देखें थोड़ा और। टूरिस्ट कम हियर बट फ्यू स्टे ओवरनाइट। देखिए बट लगा दिया है। टूरिस्ट कम हियर बट फ्यू स्टे ओवरनाइट, तो क्या कहना चाह रहे हैं? शायद ही कोई रुकता है, आते हैं लेकिन शाम तक वापस निकल जाते हैं। शायद ही कोई रुकता है ओवरनाइट। So tourists come here for a day trip. They come here for a day trip. A day trip is when you do not stay overnight. है ना? सुबह आए शाम तक वापस निकल लिए, तो वो डे ट्रिप कहलाता है। जैसे राजगीर बिहार बिहार शरीफ के वालों के लिए क्या है? डे ट्रिप की जगह है। बिहार शरीफ वाले लोग जाते हैं राजगीर, लेकिन ओवरनाइट कौन रुकता है? हार्डली एनी वन, फ्यू पीपल स्टे ओवरनाइट, राइट? तो हम लोग क्या कह रहे हैं? बोलने का मतलब कि कोई कभी नहीं रुकेगा, ऐसा बोलने का मतलब है नहीं। हम ये एम्फसाइज कर रहे हैं कि लोग रुकते नहीं हैं,
लेकिन ऐसा थोड़ी कि शायद ही कोई रुकता है। ये शायद ही क्या है भाई, शायद ही कोई रुकता है, यानी कि कभी कभी कोई रुका, लेकिन नहीं रुकते लोग। पॉइंट ये है बोलने का। तो इसलिए मैं शायद ही लेके आया। आप कभी भी किसी भी टीचर के मुंह से फ्यू के लिए शायद ही सुने तो समझ जाइएगा कि वो टीचर वो कोई किताब के ज्ञान नहीं दे रहा आपको। वो इंग्लिश भाषा को फील करता है, उसने देखा कि हम हिंदी में ये बोलते हैं, उसको मिलाया और आपके सामने लेके आया। ठीक है। और ज्यादातर किताबें जो होती हैं ग्रामर की, टीचर्स जो होते हैं, वो ग्रामर में किताबों में लिखी बातें आपको चिपका देते हैं, बात खत्म हो गई। उनकी खुद की फीलिंग होती नहीं। इसीलिए लैंग्वेज भी स्लिपरी है, टीचर की समझ नहीं है, तो स्टूडेंट्स इवेंचुअली विक्टिम बन जाते हैं और रूल सही पढ़ते हैं और गलत समझ बनाते हैं। रूल सही पढ़ते हैं, रूल्स गलत नहीं बोल रहे होंगे, उसकी गलत एक्सप्लेनेशन दिमाग में बैठा के बैठे होंगे, समझ गलत बैठा के बैठे होंगे। चलिए देखते हैं आगे। टूरिस्ट कम हियर बट हार्डली एनी वन स्टे ओवरनाइट। चलिए हो गया है। अब कैन बी यूज मोर फ्रीली व्हेन दे, हाँ जी, Sir, हाँ जी, हाँ जी, पंखुड़ी। here we saw little, we didn't see much. हम्म तो we saw little वो negative feeling दे रहा, हम्म दिखा ही नहीं. But when we read this sentence, we didn't see much, वो feeling दे रहा है ना कि थोड़ा, मतलब थोड़ा सा ही दिखा है ऐसा कुछ, मतलब we didn't see much, अरे हर ज्यादा हर नहीं में, दिखा. अरे बोलने का टोन, आप फैक्ट्स पे चले जाते हो, आप वैल्यू नहीं करते बोलने वाले का मूड। आपका प्रॉब्लम है कि आप कहते हैं कि जब मैं कह रहा हूं गिलास आधा खाली है, तो आप कह रहे हैं गिलास आधा भरा हो। मेरा मूड तो देखो कि मैं खालीपन को देख रहा हूं। आप मत मुझे बोलो कि गिलास आधा भरा हो, मुझे भी दिख रहा है। मैं बोल रहा हूँ गिलास आधा खाली, इसका मतलब मैं खालीपन पे ध्यान दे रहा हूं। तो उसको एक्नॉलेज करो ना, मेरे टोन को। ये नहीं कर रहे हो आप मेरी बात का जो मतलब, मैं जो मूड दे रहा हूं वो नहीं एक्नॉलेज करके, उसका जो एक हिस्सा है जो मैं नहीं बोल रहा उस पे चले जाते हो और कहते हो वो है। हाँ है, कौन डिसएग्री कर रहा है इस बात से? है। बोलने वाला क्या बताना चाह रहा है ये देखो ना, ये लाइन बोल करके अगला क्या बताना चाहता है। ठीक है। Intention. हाँ, उसका एक एटीट्यूड नेगेटिव है कि नहीं, लोग नहीं रुकते हैं। ठीक। ये बात तब आपको समझ में आएगी जब आप इसको अफ्यूज से करना चाहेंगे। चलिए आपकी बात के लिए, ठीक है, आप तो कह रहे हैं कुछ लोग तो रुकेंगे, हम लोगों ने ज्यादा नहीं देखा, तो वी सॉ अ लिटिल कर देते हैं। चलिए ठीक है मेरे बच्चे, हम उसको अ लिटिल कर देते हैं। तो क्या अब हम ज्यादा देख लिए? अभी आप तो कह रहे थी कि सब कुछ नहीं देखा, थोड़ा तो देखा, तो अ लिटिल क्यों नहीं बोल सकते? इसका जवाब अब आप दीजिए अपने उस एक्सप्लेनेशन की वजह से। Sir, I just said वो didn't see much वाला वो feeling वैसा दिया जो कि like ज्यादा नहीं देखा, wait, मैं मान रहा हूं, यही है, सही बात है, थोड़ा सा देखा, ठीक है, समझ में आ रहा है, आपकी बात सही है। वी डिडंट सी मच। आप मुझे ये बताइएगा कि मैंने यहाँ वी सॉ अ लिटिल कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है सेंटेंस में? तो वही सामने वाला का इंटेंशन, क्या? लाइक उसको कुछ दिखा नहीं, बट वो थोड़ी बोलेगा अरे दिखा मेरे को. ही विल से नेगेटिव फीलिंग। वो, हाँ, नेगेटिव फीलिंग. और नहीं नहीं यहाँ नहीं, पे मैं इफ आई से, अभी मैं रूल्स नहीं चाहता, मैं चाह रहा हूँ कि अब सीधे सीधे सेंटेंस को, मुझे दोनों सेंटेंस की सर हिंदी ये बताएं। वी सॉ अ इंटेंशन, लिटिल, वो वी सॉ अ लिटिल, वी सॉ लिटिल, दोनों को हिंदी में बोल के दिखाइए। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है और आपको हिंदी भाषा आती है, तो हो सकता है वही शब्द नहीं, कोई शब्द यूज करके तो आप वो फीलिंग दे ही दोगे जो आप दे रहे हो फीलिंग ना। फीलिंग्स तो शब्दों के ये गुलाम नहीं होगी, आप घुमा फिरा लोगे जब आपको मैं बांध नहीं रहा कि वही शब्द यूज करने हैं। तो मैंने कहा वी सॉ लिटिल और वी सॉ लिटिल। वी सॉ अ लिटिल, और थोड़ा मोड़ा दिखा था, लाइक ऐसे हम्म। बोल सकते हैं, वी सॉ लिटिल, कुछ नहीं दिखा यार. हाँ, ये अच्छा लगा जिस टोन में बोला ना, अरे यार कुछ नहीं दिखा है यार, ठीक है, ये कुछ नहीं देख पाए यार, ये बढ़िया था। क्योंकि इससे कोई ये टोन नहीं लेगा कि एकदम कुछ भी नहीं दिखा। जो टोन दिया है उसने, गौर करना सारे लोगों ने, उसने जो बॉडी लैंग्वेज बनाई बोलते समय, अरे यार कुछ नहीं देखे यार, ठीक है, तो ये आदमी हो सकता है एक दो चीज देख के आया हो, लेकिन निराश है कि ज्यादा नहीं, जितना देखना था नहीं देखा। हाँ के ना खुशी? किसी शहर गए घूमने Yes. के लिए और आप वापस आए ये बात बोल करके, ये अरे यार कहाँ कुछ देख पाए यार, कहाँ कुछ, तो आप क्या, वी सॉ जैसे नेशनल लिटिल। पार्क गए और लायन नहीं देखते। ठीक है। अब यास्मीन में आप बात करिए हम लोगों से। जी सर, बोले जैसे नेशनल पार्क गए और लायन नहीं देख पाए, टाइगर हाँ नहीं देख पाए। कहाँ कुछ देखे यार। तो ये है नेगेटिव एटीट्यूड बताने वाले का कि वो नहीं देखा। वी सॉ लिटिल, एक्नॉलेज करना है हाँ के तौर पे, वो वाइनिंग नहीं होगा, राइट।
We didn't have much time, but we saw a little. Okay. तो ये हाँ का एक्नॉलेजमेंट वाला मामला आएगा, राइट? ये टोन ये वाला नहीं होगा, क्या कहते हैं, नेगेटिव वाला नहीं होगा, वाइन करने वाला नहीं होगा। वी सॉ लिटिल, हाँ के लिए आएगा। तो भले ही थोड़ा, लेकिन हाँ, गॉट इट? वी सॉ लिटिल में कंप्लेन नहीं होगा पंखुड़ी, ये कंप्लेन करने के लिए कोई नहीं यूज कर पाएगा उसको। वी सॉ लिटिल, ओके, वो हाँ के लिए यूज कर पाएगा, और ये है नेगेटिव के लिए। तो यही दोनों में फर्क है। दोनों में थोड़ा ही रहता है, लेकिन बोलने वाले का एटीट्यूड रहता है ना हुआ, और एक का है कि हाँ थोड़ा हुआ, ये है, ठीक है? तो इसलिए ये कह रहा हूं, बोलने वाले का एटीट्यूड। फिर से बोलूंगा, मैं जब बोलता हूं गिलास आधा खा लिए, तो आप मुझसे बहस नहीं करिए कि गिलास आधा भरा है, मुझे भी दिख रहा है। मैं इस बात को एक हाईलाइट करना चाहता हूं कि गिलास आधा खा लिए, तो मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूं कि मैंने नहीं देखा ज्यादा कुछ, ठीक है? इस बात पे मेरा फोकस रहेगा, नहीं पे फोकस रहेगा। हो सकता है आपको थोड़ी परेशानियां रह जाए, कोई बात नहीं है, हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। कभी भी ये सोचना किसी भी टीचर का कि उसने एक रूल एक्सप्लेन कर दिया है तो बच्चे वो उसको यूज में, उसके एप्लीकेशन में पारंगत हो जाएंगे, मतलब ये मेंटली रिटार्टेड एटीट्यूड होगा किसी टीचर का। नहीं होता ऐसा, छोटी छोटी चीजों में गलतियां होती हैं। तो आई एम ओपन टू दैट। अगर आप गलतियां करेंगे, मिस्टेक्स करेंगे, वी विल डिस्कस दिस अगेन, नो इश्यूज, ठीक है? इसीलिए इंटरैक्टिव क्लासेस का वैल्यू ज्यादा है रिकॉर्डेड क्लासेस के तुलना में, जहां पर आप पलट के अपनी बात नहीं बोल सकते, जो फीलिंग आ रही है टीचर की बात सुन करके। इसीलिए मैं लोगों को कहता हूं कि रिकॉर्डेड क्लास से ज्यादा सामने बैठ करके सुनने में यह है, क्योंकि आप अपनी फीलिंग सामने रख सकते हैं, उसके पर उस पर फीडबैक ले सकते हैं। आइए देखते हैं। कई बार ना ये वर्ड जो है, सो लिटिल, देखिएगा, टू मैनी, अच्छा, टू फ्यू, सो लिटिल, ओके, और इस तरह Sir, से भी वर्ड, हाँ। I'm sorry, but I'll be just back in 5 minutes. No problems, I can Something see that you are being, you urgent. need, yeah, Pankaj, go ahead, Yeah. no problems, come back when you can. I'm unwilling to try a drug I know so little about. अच्छा, देखना क्या लिखा है। हम नहीं ऐसा ड्रग ट्राई करेंगे जिसके बारे में इतना कम पता है, राइट? नेगेटिव ही हुआ ना, जिसके बारे में इतना कम पता है। इसमें ए नहीं है, गौर करना। तो ए लिटिल, ए फ्यू का यूज हो गया एक खास जगह पे, उसमें कुछ क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखिएगा, आई एम अनविलिंग टू ट्राई अ ड्रग आई नो सो लिटिल अबाउट। हम ऐसा ड्रग ट्राई करने के चक्कर में नहीं है, हम, मेरा मन नहीं है ऐसा, अनविलिंग, अनविलिंग, रिलक्टेंट, मन नहीं है, राइट? आई एम अनविलिंग टू ईट एनीथिंग ही गिव्स मी, ओके, वो जो देता है हमको खाने का मन नहीं करता, आई एम अनविलिंग, ओके। आई एम अनविलिंग टू ट्राई अ ड्रग आई नो सो लिटिल अबाउट। इतना कम जानते हैं जिस चीज के बारे में, वो चीज हम नहीं ट्राई करेंगे, पहले समझ रहेगा मेरा, उसके बाद। दे हैव टू मेनी टेक्नीशियंस, वी हैव टू फ्यू। उन लोग के पास बहुत ज्यादा, हम लोग के पास जरूरत ज्यादा ही कम है। दे हैव टू मेनी टेक्नीशियंस, जरूरत से Sir, ज्यादा है उनके if we पास। use हम्म। so a little about in first one, सो नहीं, can होता ही we नहीं, make होता ही it नहीं, होता ही नहीं, होता ही नहीं है। वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो होता ही because नहीं है। of unwilling word? नहीं नहीं नहीं, होता ही नहीं है। ये सारे वर्ड्स नहीं यूज होते इसके साथ, ध्यान रखना। ये लिटिल और फ्यू के साथ यूज हो सकते हैं ये सारे, सो, वेरी, टू, Okay. एक्सट्रीमली फ्यू, एक्सट्रीमली लिटिल, ओके। ये सारे वर्ड्स लिटिल और फ्यू के साथ यूज होते हैं, ए के साथ नहीं यूज होते, ओके। जरा सेंटेंस का मतलब अप्रिशिएट करिएगा। आई एम अनविलिंग टू ट्राई अ ड्रग आई नो सो लिटिल अबाउट। हम ऐसे ड्रग यूज करने, ट्राई करने के लिए इच्छुक नहीं है, ठीक है, जिसके बारे में हम इतना कम जानते हैं, ना के बराबर जानते हैं, इतना कम जानते हैं, इतना कम, हिंदी में सुना है, इतना कम जानते Yeah. हैं, ठीक है। आई नो सो लिटिल अबाउट। मैं हिंदी जब बताऊंगा तो मैं वो हिंदी बताऊंगा जो एक्चुअली मैच कर जाती है उस इमोशन से, ठीक है। अगर आप भी उस हिंदी को ध्यान रखोगे और उसको समझोगे तो आपको अच्छा इंग्लिश समझ में आएगा। आई नो सो लिटिल अबाउट। दे हैव टू मेनी टेक्नीशियंस, उन लोग के पास जरूरत से ज्यादा टेक्नीशियंस हैं। वी हैव टू फ्यू, और हम लोग के पास जरूरत से बहुत कम, वी हैव Yeah. टू फ्यू, ओके। तो इस तरह से भी यूजेस हैं, टू फ्यू, वी हैव टू फ्यू। देर आर फ्यूअर बटरफ्लाइज एवरी ईयर, हर साल बटरफ्लाइज की संख्या घट रही है। देखो, एक लाइन में बोल दिया उसने, देर आर फ्यूअर बटरफ्लाइज एवरी ईयर। Fear.
देर आर फ्यूअर बटरफ्लाइज एवरी ईयर, हर साल बटरफ्लाइज की संख्या क्या हो रही है, नीचे जा रही है। हम्म अभी ध्यान रखना है कि ये एडवर्ब के अच्छा यहाँ पर तो ऑब्वियसली इनको आप नाउन के पहले यूज कर रहे थे, अ फ्यू पेन्स, अ लिटिल वाटर, तो ये एडजेक्टिव थे, ये तो समझ में आ रहा था आपको, क्योंकि नाउन के Yeah. पहले आ रहे थे तो किसी तरह के एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना। बाय द वे उनको कहा जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, अगर टेक्निकल लैंग्वेज जानना चाहते हैं तो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, ठीक। आगे देखते हैं कि ये एडवर्ब भी हैं, यानी वर्ब के बाद भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हेजिटेटेड अ लिटिल, अच्छा ये नहीं लिखा है, कुछ और लिखा है यहाँ पे, अच्छा चलो देखो यहाँ क्या लिखा है, दे ग्रम्बल्ड अ लिटिल अबाउट हैविंग टू वेट, ठीक है। मैंने मैंने एक बोलचाल वाली भाषा दी आपको, एग्जाम्पल दिया, ही हेजिटेटेड अ लिटिल बिफोर ही पिक्ड अप द रसगुल्ला, ही हेजिटेटेड अ लिटिल बिफोर ही पिक्ड अप द रसगुल्ला, रसगुल्ला उठाने से पहले वो थोड़ा हिचका, ठीक है। ही हेजिटेटेड अ लिटिल, दे ग्रम्बल्ड अ लिटिल अबाउट हैविंग टू वेट, क्योंकि उनको इंतजार करना पड़ रहा था, इस बात से उनको थोड़ा सा टेंशन हुआ, उनको थोड़ा सा चेहरे पर ये आ गया, हम लोग को इंतजार करना पड़ा, दे ग्रम्बल्ड अ लिटिल अबाउट हैविंग टू वेट। तो जब आप ग्रम्बल करते हैं तो आप वाले ये वाली फीलिंग लाते हैं, जैसे कि आप खुश नहीं है, राइट, ओके। दे ग्रम्बल अ लिटिल अबाउट हैविंग टू वेट। तो अ लिटिल देखिए कहाँ यूज हुआ है, वर्ब के बाद, ठीक। जैसे मैंने कहा, शी स्माइल्ड अ लिटिल बट डिडंट से एनीथिंग, शी स्माइल्ड अ लिटिल बट डिडंट से एनीथिंग, थोड़ी मुस्कुराई वो लेकिन कहा कुछ नहीं। तो आप वर्ब के बाद भी अ लिटिल बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप बोलते हैं ना, अ लॉट भी तो बोलते हो, आई वॉच टीवी, शी लाफ्स अ लॉट, शी लाफ्स अ लॉट भी तो आप बोलते हो, तो अ लॉट का ऑपोजिट कैसे बोलो, शी लाफ्स अ लिटिल बट सेज नथिंग, ओके, वो हंसती है थोड़ा लेकिन बोलती कुछ नहीं है, ओके। ओके, तो आगे देखें, कुछ अनफेवरेबल एडजेक्टिव के साथ भी इनको यूज किया जाता है, अनफेवरेबल, इसको सॉफ्टनर के तौर पे लीजिए। ये सारी बातें मैंने लैंग्वेज क्लास में बता रखी है, अगर आप देखें तो, ऐसा नहीं कि पहली दफे आप सुन रहे होंगे। सॉफ्टनर्स मैंने बताया कि कई बार क्या होता है कि आप कोई खराब बात को ना थोड़ा सा हल्के से बोलना चाहते हैं, जैसे आप किसी के घर गए और चिकन करी दिया उसने खाने के लिए, और आप वेजिटेरियन तो आपको पनीर चिली खिलाया, और आप कह रहे हैं, सूसू कर रहे हैं आप, थोड़ा पानी ज्यादा पी रहे, पूछा क्या तीखा है, हाँ थोड़ा तीखा है, तो आप थोड़ा तीखा है ऐसे मुंह बना के क्यों कहते हैं, क्यों नहीं बोल देते सीधा सीधा बहुत तीखा है, क्योंकि इट विल बी रूड। तो ये सॉफ्टनर है, जरा देखना है यहाँ पे, अ लिटिल एंग्शियस, थोड़ा परेशान, अ लिटिल अनविलिंगली, थोड़ा अनमने ढंग से, अ लिटिल अनॉयड, थोड़ा चिढ़ा हुआ, अ लिटिल इम्पेशेंटली, थोड़ा हड़बड़ा करके, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा वर्ड बोलने की क्या जरूरत है, और अनफेवरेबल एडजेक्टिव मतलब नेगेटिव फीलिंग्स वाले एडजेक्टिव, अनफेवरेबल, क्योंकि आप उसको सीधा सीधा नहीं बोलना चाहते, तो आप अक्सर सुनेंगे, तो ये सॉफ्टनर का काम करते हैं वहां पे, थोड़ा टोन को सॉफ्टन कर देते हैं ताकि उतना बुरा ना लगे, ठीक है। शी गेव मी हर शार्पनर अ लिटिल अनविलिंगली, शी गेव मी हर शार्पनर, बच्ची ने, लड़की है छोटी सी, शी गेव मी हर शार्पनर अ लिटिल अनविलिंगली, उसने अपना शार्पनर दिया, ठीक है, अ लिटिल अनविलिंगली, थोड़ा अनमने ढंग से दिया, देने का उसका मन नहीं था शार्पनर, लेकिन फिर दे दिया, लो, ठीक है। शी गेव मी हर शार्पनर अ लिटिल अनविलिंगली, ओके। तो आप समझ सकते हैं कि एडवर्ब है ये, अ लिटिल, तो इस तरह से भी आपको यूसेस दिख जाएंगे। क्या आप लोग इन फ्रेजेस की हिंदी समझ पाते हैं फटाक से पढ़ते के साथ, अ लिटिल एंग्शियस, वो थोड़ा थोड़ा परेशान था, ही वॉज अ लिटिल एंग्शियस, वो तो चिढ़ा हुआ था कि बच्चे लेट आए थे, ही वॉज अ लिटिल अनॉयड दैट द स्टूडेंट्स वर लेट, ही वॉज अ लिटिल अनॉयड, ओके। तो आप इसको वेरी से भी सोच सकते हैं, ही वॉज वेरी अनॉयड, वो बहुत ज्यादा फीलिंग दे रहा है, ही वॉज अ लिटिल अनॉयड, ओके। और देखिएगा कहाँ पर यूज होता है, ये कंपैरेटिव के साथ भी यूज होता है, थोड़ा ना, थोड़ा थोड़ा तीखा कर दीजिए, गोलगप्पा खा रहे हैं, अब गोलगप्पा वाले को कहते हैं थोड़ा तीखा कर दीजिए, मेक इट अ लिटिल हॉटर, मेक इट अ लिटिल स्पाइसियर, ठीक है। कंपैरेटिव के साथ अक्सर यूज करते हैं, द पेपर शुड बी अ लिटिल थिकर, पेपर थोड़ा मोटा होना चाहिए, थोड़ा पतला है ये, थोड़ा मोटा होना चाहिए, जितना है उससे ज्यादा ना, तो द पेपर शुड बी अ लिटिल थिकर, कंपैरेटिव एडजेक्टिव। I think you should do a little more.
आई थिंक यू शुड डू अ लिटिल मोर। तो अ लिटिल ऐसे यूज कर सकते, can't you walk a little faster? Can't you walk a little faster? तो ये सारे जगहों पे अ लिटिल की जरूरत है। आप देख सकते थोड़ा तेज नहीं चल सकते, थोड़ा बोलना है ना, थोड़ा बोलना है ना, अ लिटिल लीजिए, ना बोलना है ना, लिटिल और फ्यू लीजिए। बात समझ में आई? तो अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो अ लिटिल और लिटिल में एक बड़ा फासला हाँ और ना का है, तो मैं आपको वापस वो ना वाली फीलिंग पे लेके चलता हूं। कई बार आप इसको वर्ब के पहले लगाएंगे, फिर वो जब भी लिटिल खाली आएगा ए के बगैर, फीलिंग ना वाली होगी। जरा देखिएगा सेंटेंस, ही लिटिल एक्सपेक्टेड टू फाइंड हिमसेल्फ इन प्रिजन। उसने कभी उम्मीद की थी कि वो प्रिजन में होगा? ही लिटिल एक्सपेक्टेड टू फाइंड हिमसेल्फ इन प्रिजन। उसको लगा नहीं था कि वो प्रिजन में होगा। देखो ये सेंटेंस का मतलब हुआ, ही लिटिल एक्सपेक्टेड टू फाइंड हिमसेल्फ इन प्रिजन। लिटिल को ड्रॉप करो, ही एक्सपेक्टेड टू फाइंड हिमसेल्फ इन प्रिजन। उसने उम्मीद की थी कि वो जेल में होगा। ही एक्सपेक्टेड टू फाइंड हिमसेल्फ इन प्रिजन, काम ही ऐसा करा तो उसको पता था। ठीक है, ही लिटिल एक्सपेक्टेड टू फाइंड हिमसेल्फ इन प्रिजन। खान सर आजकल जेल में है, ठीक है, पकड़े, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो अच्छा कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, सपोर्ट रहता है उनको हमेशा, हम हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं। बाय द वे, वो आदमी गलत कर ही नहीं सकते, मतलब बड़े ही लॉजिकल आदमी है। हाँ देखिए, ही लिटिल एक्सपेक्टेड टू फाइंड हिमसेल्फ इन प्रिजन। क्या लिखा है? ही लिटिल एक्सपेक्टेड टू फाइंड हिमसेल्फ इन प्रिजन। यहाँ क्या समझे, ये लिटिल का क्या मतलब है? शायद ही उसने उम्मीद की थी कि वो अपने आप को जेल में पाएगा, चलो। शायद ही आ गए। फिर अ लिटिल नहीं है, ध्यान रखना, लिटिल है, नेगेटिव। He little thought that one day he would be married to the same girl. उसने कभी नहीं सोचा होगा, शायद ही उसने सोचा होगा, ऐसे बोल जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसने शायद ही सोचा होगा कि वो उसी लड़की से उसकी शादी हो जाएगी। He little thought that one day he would be married to the same girl. तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं सेंटेंसेस को। अब कौन जाने, अगर आप हायर लेवल के एग्जाम दे रहे हैं, जैसे आप कैट की तैयारी कर रहे हैं खुशी, ठीक है, वहां पर क्या होगा, कोई भरोसा नहीं। आपको वहां भी कॉमन एरर्स स्पॉट करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर एग्जाम्स में कॉमन एरर स्पॉट करने के लिए आते हैं। तो क्या होता है ना कि ज्यादातर एग्जाम्स एक पैटर्न बनाए हुए हैं कि लड़कों को टेंशन नहीं देने का, ज्यादा एक सर्टेन पैटर्न पे पूछते रहना है। अगर अदरवाइज कॉमन एरर्स कैन बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू स्पॉट, क्योंकि बच्चे इतने तैयार होकर नहीं जाते एग्जाम में कि उनको सब कुछ आता हो। बात समझ में आ रही है? लेकिन क्या है ना कि वो सर्टेन चीजें बार बार पूछते रहते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को एक आइडिया हो जाता है। जैसे यहां पर हो सकता है, ही अ लिटिल एक्सपेक्टेड टू फाइंड हिमसेल्फ इन प्रिजन, और आपको कहा जाएगा कि कहां पे है एरर। ही अ लिटिल एक्सपेक्टेड टू फाइंड हिमसेल्फ इन प्रिजन। तो कई बार स्टूडेंट्स ना गेस वर्क करते हैं, उनको लगता है ए लिटिल लिखा है लिटिल होना चाहिए, लिटिल लिखा है ए लिटिल होना चाहिए, ऐसा सोच के चल देते हैं वो। ठीक है, क्योंकि But तो what ही I was thinking he is आना चाहिए, is missing. He is a ओके, little, not little, a little. अच्छा, ये ही सब्जेक्ट है और एक्सपेक्टेड वर्ब है। ओके, ही एक्सपेक्टेड, उसने उम्मीद की थी, उसने नहीं उम्मीद की थी, उसने शायद ही उम्मीद की थी कि वो कभी जेल में होगा। ही लिटिल थॉट, उसने शायद ही कभी सोचा था कि वन डे, फिर आगे जो बोलना है हमें बोल दें। तो मेरे ख्याल से मैंने ये लिटिल और लिटिल आपको थोड़ा बहुत समझाया है। सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे जो होगा आप लोगों के लिए, वो होगा हाँ या ना। अगर ए लिटिल है, तो जब भी दोनों के बीच कंट्रास्ट देखना है, तो अ लिटिल से हाँ की फीलिंग आएगी और लिटिल से ना की फीलिंग आएगी। और मैंने जितने एग्जांपल्स दिए हैं उसको दोहरा लेना, अगर मुश्किल ज्यादा लगे तो वी कैन टॉक अबाउट थिंग्स इन द नेक्स्ट क्लास एज वेल। ठीक है, याद रखें, एक सर्टेन लेवल तक ग्रामर ना रूल्स और सिंपल एग्जांपल से काम चलता है, फिर उसके बाद इमोशंस फीलिंग्स की बात आने लगती है, वहां पे आपको डीपर जाना ही होगा। जैसे अभी जो हम लोग बातें कर रहे हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल तक सिंपल था, लेकिन ये कहाँ लिटिल हो कहाँ लिटिल हो, क्या फर्क है, इसमें सीधा मामला है फील क्या आता है। अगर आप फीलिंग समझ पाने में सक्षम है, यू विल अप्रिशिएट दिस रूल इजिली। अदरवाइज आपको वहां पर अपने आप को लेके आना होगा इंग्लिश में, जहां पे इस फीलिंग को अप्रिशिएट कर पाए, हाँ और ना वाली फीलिंग को। मैं एक एग्जांपल देता हूं। लिटिल डिड आई नो दैट द गाय
who was always, little did I know that that someday I would be teaching students from other countries and I would be earning my livelihood teaching English. Okay, little did I know, because I know where I come from, I know what I was doing in 2003, 2004. I know very well, 20 years back. This was not on my, plan. So little did I expect, little did I know, और ये है inversion. He little expected, he little knew, he little thought, ये सारी है ना. मैं इसको दूसरे तरीके से बोल रहा हूँ, ये थोड़ा ड्रामेटिक साउंड करता है, ज्यादा इमोशंस ये करेगा. अगर जिसको इंग्लिश समझ में आती है तो उसको ज्यादा इमोशनली ये करेगा, अपील करेगा. लिटिल डिड आई नो, लिटिल डिड आई थिंक, ये इनफैक्ट ये है इन्वर्जन. आई लिटिल थॉट, आई लिटिल न्यू, शायद ही मुझे पता था. तो आप लोग ये शायद ही के लिए जो वर्ड लिटिल मैंने सिखाया जिस तरीके से, इसको प्रैक्टिस करना, एक दो सेंटेंसेस. दोबारा एक क्लास देखना पड़ सकता है क्योंकि ग्रामर क्लास था, इसको देखना पड़ सकता है दोबारा दोस्तों. तो आज के लिए बस इतना ही. वी हैव स्पेंट नियरली 90 मिनट्स ऑलमोस्ट. ओके, तो आई थिंक वी शुड रैप अप, अदरवाइज इट विल बी टू मच. आज का क्लास था बेसिकली अबाउट अ लिटिल एंड अ फ्यू, लिटिल एंड फ्यू. और फिर मिलेंगे हम लोग बुधवार को रात में 8:30 बजे. ठीक है, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, बस बाय बाय, Okay, बाय bye, बाय, sir. बाय बाय.